इन दैट टाइम द इंडिया, वी नो दैट इंडिया कितने तरह का था, 2 तरह का था. वन वाज प्रिंसली, इंडिपेंडेंट थे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, और दूसरा am I audible to online students? All right, okay. So today we will be talking about the why history is important, because this is my first class with you and you must have been reading here, right? So which of the portions of Indian history have been completed? The previous teacher. Modern Indian history and post-independence. Post-independence and modern, both have been completed. So you are remaining with ancient, medieval and world history. All right. And it is for history optional, right? And you must be doing your GS paper also here. GS paper 1 and prelims also, hai na? So if you read history optional, you will be able to complete GS paper 1 also and prelims also. Okay, so whatever we will study in ancient, medieval and world history, we will try to see we solve all the questions also in mains optional, mains GS paper 1 and then prelims also. Okay, so we will see all the things in our test, in our class test, or through the discussion we will be looking into all the questions. All right, so since you already have taken history as an optional, you already know why history is important, hai na? So we don't need to talk so much about it. Briefly I will be talking and asking you only that why history is important. Let us discuss first and then we will move towards syllabus and all, huh? So start with you. What's your name? Adnab. And why history is important? अच्छा, जैसे जैसे प्रीलिम्स में कितने क्वेश्चंस आते हैं हिस्ट्री से? 100 क्वेश्चंस. हाँ, 10 is very low. At least 15, है ना? If you see the data, we will see the map and diagrams also, है ना? तो पहले वही करते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं वो देखते हैं. If you see this data, I hope it is visible to online students also. If you see the data, this data is from 2013 to 23 for the last 10 years. Okay, and in 2013, a total of 15 questions were asked. Total of 15 questions were asked in this year 2013. Then 14 it was 20 questions were here in 15. 16 it was less, it was 14. Then 17 questions were asked, and then it jumped in 2018, and which was 21 questions out of 100 in prelims. Then it was 15 for some time, but again in 2020 it was 20, 21 questions in 21, then 16 questions in 22, and then finally it was very less, it was 13. For the last 10 years, 2013 we had a very less questions from history. It doesn't mean that in 2024 it will be 10, and it may be 20 also, 21 also, or sometimes it may go up to 25 also. All right, so this we know. Do you know why there were 13 questions only from history this time? You don't know? आप कोई नहीं जानते? Okay, anyone from online students? ठीक है, इस पे हम बात करते हैं. तो आपका नाम क्या है? आयुष. और आपने क्यों हिस्ट्री लिया? सेम जो इन्होंने बोला, प्रीलिम्स इन सब में आता है अच्छा क्वेश्चन. आप लोग का ग्रेजुएशन भी हिस्ट्री से है? किसका है हिस्ट्री से ग्रेजुएशन? आपका हिस्ट्री ऑनर्स है? बीए प्रोग्राम. कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है? अभी आप चल ही रहा है ना? यू आर इन बीए, है ना, ग्रेजुएशन. एंड आपका मैकेनिकल से है, एंड यू आर बीटेक, एमटेक आल्सो? ओनली बीटेक. और आपका? तो आपका हिस्ट्री ऑप्शन, मतलब हिस्ट्री मेन पेपर नहीं रहा है. ठीक है, चलिए हम थ्रू अप टाइम हम समझेंगे और कोशिश करेंगे कि आप हिस्ट्री में एक्सपर्ट बन जाए, ताकि आपको यूपीएससी इजीली निकल जाए. सबके लिए भी, ऑनलाइन भी जो भी स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, आप सबका क्या क्या पेपर रहा है आप टाइप कर सकते हैं अपना. हिस्ट्री रहा है आप लोगों में से किसी ग्रेजुएशन में, और यू आर फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड?
Anyone? All right. History honors. Subsidiaries are very nice. So we know कि in the prelims history had been important parts. Okay, if we go to अच्छा पहले हम बात करते हैं क्यों कम आया है, ठीक है. हिस्ट्री में जनरली क्या होता है, अगर आप प्रीलिम्स और जीएस पेपर 1 और मेंस में जाते हैं तो मेंस में क्या आता है, मेंस ऑप्शनल में द हिस्ट्री इज अ होल सब्जेक्ट. वी हैव टू रीड एवरीथिंग फ्रॉम एंशिएंट टू पास्ट वर्ल्ड आल्सो, वर्ल्ड हिस्ट्री आल्सो, है ना. वी हैव टू रीड एवरीथिंग, बट इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स देयर इज अ डिफरेंट सिलेबस, है ना. इफ यू गो टू इंडियन हिस्ट्री इन प्रीलिम्स, अगर आप प्रीलिम्स पे जाते हैं तो दिस इज अ सिलेबस ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स हिस्ट्री. And what is the syllabus? Read. What is the syllabus? That's in online. The syllabus of UPSC, the official syllabus of UPSC say history of India and Indian national movement. That's it. मतलब there is no world history in prelims, है ना. वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन से आते हैं, वो कंबाइन हो जाता है वर्ल्ड हिस्ट्री में. ज्योग्राफी से आते हैं, बहुत सारे वर्ल्ड हिस्ट्री से रहते हैं, बट डायरेक्टली वर्ल्ड हिस्ट्री से क्वेश्चंस नहीं आते, ठीक है. रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. It means you can divide this syllabus into 2 parts. This is 2 part. Part 1, मतलब the whole history of India is part 1, and the half of the portion is given on Indian national movement. मतलब इंडियन हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम, जैसे हंटर एंड गैदर्स ले लो, स्टोन एज 7 लाख साल पहले, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ 7 मिलियन ईयर्स एगो, है ना. मतलब 70 लाख साल हो गए, मिलियन ईयर्स एगो, जिसे हम स्टोन एज बोलते हैं, ठीक है. तो द हिस्ट्री सिलेबस स्टार्ट फ्रॉम दिस पीरियड एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट स्टार्ट इन विच टाइम, 1885 या 1857 ले लो, ठीक है, जब रिवॉल्ट हुआ था. सो मतलब इतना साल आधा हुआ, 1857 टू 1947. It is a period of how many years? 90 years. It means the half of the portion is given to 90 years only, and the half of the portion is given to the whole. इतने मिलियन नहीं तो आप हड़प्पा सभ्यता ले लीजिए. हड़प्पा सभ्यता 3000 आज से 5000 वर्ष पहले था, तो 5000 हिस्ट्री जो ओल्ड है ना. तो हमेशा से इंडियन नेशनल मूवमेंट के क्वेश्चन जब 20 क्वेश्चन हिस्ट्री में आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में, तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 क्वेश्चंस, 12 क्वेश्चंस आउट ऑफ 20 इन हिस्ट्री आर फ्रॉम दिस फेज only. दिस टाइम दे डिडंट आस्क मच क्वेश्चंस फ्रॉम दिस फेज. इससे क्वेश्चन नहीं पूछा. एंशिएंट हिस्ट्री से 4 क्वेश्चंस पूछे इस बार. देयर आर 4 क्वेश्चंस फ्रॉम एंशिएंट हिस्ट्री ओनली. वन इज ऑन बुद्धिज्म, अदर इज ऑन सोर्सेज, स्तूपा पे क्वेश्चन है ना. तो सैविज्म पे क्वेश्चंस था, सैविज्म रसनिज्म पे. तो इट मीन्स द क्वेश्चंस वर नॉट फ्रॉम दिस फेज, दैट इज वाई देयर आर लेस क्वेश्चंस, है ना. तो यूपीएससी इज ऑलवेज अ डायनेमिक स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस. दे ऑलवेज आस्क डायनेमिक क्वेश्चंस. देयर वाज अ ईयर 1819 में दे आस्क अबाउट 55 to 60 questions from current affairs. And when I was in JNU, I was doing PhD from JNU. So I saw most of my friends and library mates, they were studying Vision IAS only, and luckily at the time what happened, they were reading 365 current affairs from Vision IAS, and all the questions came directly from there. Why? Because most of the questions were current affairs, and many people got selected in their prelims. So समझ में आ रहा है, मतलब कहीं से भी कभी आर्ट एंड कल्चर से अच्छे क्वेश्चंस आते हैं. समटाइम्स दे विल आस्क 30 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट्स ओनली. But history had been key important point. If you see this data, on an average basis, at least 17 to 18 questions are asked. That is why history is important. 17 to 18 questions are very much important for us. And if you see the mains, this is 2018 when they asked 5 questions out of how many? 20. GS paper 1, है ना. So 5 means how many percentage? 25% of person. And this year, मतलब 2022 वाला जो पेपर मेंस का पेपर था, in which they asked how many questions?
6 क्वेश्चन, इट इज मोर देन 25%. मेंस जीएस पेपर 1, वी आर टॉकिंग मेंस जीएस 4. तो फॉर द मेंस जीएस पेपर 1, मेंस जीएस पेपर 1 में क्या सिलेबस है? हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड, one is this one, other is geography, and the third is Indian society. So paper 1 comprise of 3 important part, and which history is important. तो इसलिए हिस्ट्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है. तो ये सिलेबस है. अगर आप सिलेबस मेंस में देखेंगे तो हमने प्री का सिलेबस देखा, वी हैव सीन द सिलेबस ऑफ प्रीलिम्स इन विच द सिलेबस इज हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट ओनली. इफ यू सी द सिलेबस ऑफ जीएस पेपर 1 मेंस का, तो जीएस पेपर 1 में 4-5 पोर्शन में हम सिलेबस को बांटते हैं. द पार्ट 1 इज आर्ट एंड कल्चर. So they will not ask any questions about Indian history, ancient Indian history, medieval history. तो GS पेपर 1 में अकबर के बारे में क्वेश्चंस नहीं रहेगा, मौर्याज के बारे में नहीं है. कहाँ से रहेगा? क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम आर्ट एंड कल्चर. मतलब एंशिएंट इंडिया में व्हाट वाज द क्लासिकल डांस, टेम्पल आर्किटेक्चर, थीम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर, म्यूजिक एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स. इन सारे क्वेश्चंस पे रहेंगे मेंस में. पेपर 1 की बात हो रही है. इट इज अबाउट आर्ट एंड कल्चर, GS paper 1. If you see, so there won't be a history of India, but there will be a modern Indian history. So they will ask questions only from modern Indian history. They will not ask from medieval history or ancient history. Modern Indian history में which are the syllabus? The 4 important agitations like Swadeshi movement, non-cooperation movement, civil disobedience movement, Quit India movement, है ना? So these will be the questions in UPSC paper 1. फिलहाल the Gandhi phase. So basically this phase starts from 19th century onward, है ना? Let's say 19th century, or we can also say this roughly as the 18th century. मतलब after the coming of the British Empire, है ना? So 18th century, and then this will go to the 1940. So modern Indian history is important point for UPSC paper 1. Then there will contribution of important personalities in Indian history. जैसे कि who are the important personalities in Indian history, modern India में? महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस एंड राजेंद्र प्रसाद, है ना? मदन मोहन मालवीय. So the questions may be on this important person. So all the questions are from modern Indian history only. So these are the second part, है ना? The first was art and culture of Indian history. हाँ, 8 क्वेश्चन आता है हमें आर्ट एंड कल्चर का. सो इन इंडियन हिस्ट्री दे विल नॉट आस्क क्वेश्चन फ्रॉम एंशिएंट इंडियन पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी. पेपर 1 में सिर्फ आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडियन हिस्ट्री रहेगा. आर्ट एंड कल्चर में सारे कंपोनेंट है जो हमने देखा अभी. क्लासिकल डांस, टेम्पल, थीम्स ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, लिटरेचर, म्यूजिकल एंड ऑल ना. सो दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ मेंस. देन देयर विल बी क्वेश्चन फ्रॉम इंडिपेंडेंट इंडिया, है ना? तो पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री किसे बोलते हैं पता है? किसे? 1940 फिर टिल विच टाइम? हाँ, टिल द जीएस पेपर में कहाँ तक रहता है? इंडिपेंडेंट इंडिया में. क्वेश्चन कहाँ से आएंगे? द इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट, रोल ऑफ इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन कौन से हैं, है ना? कांग्रेस, राइट विंग, लेफ्ट विंग, सबसे आएंगे. इंपॉर्टेंट मूवमेंट्स आफ्टर 1947, कम्युनलिज्म जैसे लेफ्ट मूवमेंट वगैरह आ जाएंगे. कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, ये वर्ल्ड लेवल पे भी पूछते हैं, थ्रू द वर्ल्ड लेवल. ऑलराइट, सो दीज आर द हिस्ट्री सिलेबस. सो वी डोंट हैव टू रीड एवरीथिंग फॉर जीएस पेपर 1, बट सिंस वी आर अ हिस्ट्री ऑप्शनल स्टूडेंट, वी आर रीडिंग एवरीथिंग. So this all will cover for us, है ना? So these were the third component of Indian history. This will be the world history, the fourth one, जो UPSC जनरल GS पेपर 1 में आते हैं. The questions will be American Revolution, French Revolution, Russian Revolution, Industrial Revolution, World War 1, 2, है ना? आइडिया colonialism, हाई colonialism से देश कैसे आगे बढ़ा, पीछे बढ़ा, ये सारे वर्ल्ड हिस्ट्री में. वर्ल्ड हिस्ट्री में भी सारा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है. दिस पेपर स्टार्ट्स फ्रॉम द 18th सेंचुरी. सबसे पहला रेवोल्यूशन कौन सा है? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, है ना? जो ब्रिटेन में हुआ था. कब से? 1750.
The first revolution will start from 1750 to 1800 in Britain. All right. The second will be American. When it happened? 1776 to 83. The third will be French. In which year? 1789. Then will be Russian. Which year? 1917. And then during this time only the idea of socialism emerged, है ना, जिसे हम बेसिकली कम्युनिज्म बोलते हैं। है पर सिलेबस में नहीं है ना, नहीं, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, बट वी विल रीड चाइनीज हिस्ट्री आल्सो, ठीक है। चाइनीज रेवोल्यूशन जो 1911 का जो रेवोल्यूशन है, तो वी विल कवर दैट आल्सो 1911। तो वो इम्पोर्टेंट रेवोल्यूशन है 1911 वाला। सो दिस विल बी द पार्ट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एंड देयर मे बी वन क्वेश्चन और मे नॉट बी वन क्वेश्चन आल्सो। मतलब वर्ल्ड हिस्ट्री से यूपीएससी जीएस पेपर 1 में कभी कभार क्वेश्चन आते हैं, नॉट एवरी डे, एंड देयर विल बी वन क्वेश्चन ओनली। Since you are a history optional student, why to skip? This will help you in your optional also. तब जो लोग वो है those people, and why to speak, why to skip? If you are preparing for prelims, the whole Indian history will be coming. तो skip क्यों करना है? हाँ, मेंस का अगर डेडिकेटेड प्रिपरेशन करना है हमें, we have to prepare for GS paper 1. So we know that the questions may not be coming from this portion. But since you will be preparing for a prelims also, तो बेटर यू रीड एवरीथिंग, है ना। और हिस्ट्री ऑप्शनल है तो क्यों छोड़ना, लेट अस रीड एवरीथिंग, है ना। बट द पॉइंट इज ये सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री पे जो लास्ट टाइम क्वेश्चंस आया था, हाउ द अमेरिकन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन चेंज द आइडियाज ऑफ वर्ल्ड। मतलब अमेरिकन, तो इसमें क्वेश्चन क्या था, द आंसर द वर्ड लिमिट विल बी 250 वर्ड्स। So you will not write what were the important causes of this movement, of this revolution. What will you write? What is the impact, है ना, आइडिया जिस फ्रेंच रेवोल्यूशन से क्या आया, डेमोक्रेसी की आई, इक्वलिटी की बात आई, है ना। अमेरिकन रेवोल्यूशन से डेमोक्रेसी आया, हाँ, कम्युनिज्म आया। तो हम वो सब डिटेल में पढ़ेंगे बाद में, बट वी हैव टू बी सेंटर टू द क्वेश्चंस ओनली, है ना। द क्वेश्चंस आर कमिंग लाइक दिस, है ना। तो वी हैव सीन हाउ द क्वेश्चंस आर कमिंग, इस तरह से किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना। एक आध क्वेश्चंस देख लेते हैं हम, ठीक है। जैसे प्रीलिम्स का एक क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमें पढ़ने में समझने में आसानी रहेगा बाद में। जैसे दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ दिस ईयर, है ना। व्हेनेवर वी रीड इंडियन हिस्ट्री, आप में से देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विद रेफरेंस टू एंशिएंट इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। What is the statement? The statement is the concept of स्तूपा is Buddhist origin. स्तूपा का concept है क्या है, बुद्धिस्ट origin है या नहीं है? चलो मान लो, आप बोलते हैं, ठीक है, मानते हैं, है, ठीक है। ये तो हमारा सही हो गया। स्तूपा was generally a repository of relics है। जो स्तूप जो है, क्वेश्चन, द स्टेटमेंट इज द स्तूपा इज जनरली अ रिपोजिटरी ऑफ रेलिक्स। जो बुद्धा थे उनके जो अंश वगैरह जो बचे, उनका स्तूप में उनका अंश रखा गया है ना। ये सही है, क्योंकि स्तूप वहीं पे बनाया जहाँ पे उनका अंश रहा है। जैसे टेम्पल्स है, टेम्पल्स में हम मानते हैं यहाँ पे भगवान आए होंगे, तो वहाँ पे टेम्पल्स बन गए, मूर्ति। जैसे रामेश्वरम में जाएंगे तो राम जी गए थे, उनका टेम्पल बन गया, ठीक है। तो रिलिक्स है ना, उनके रिमेन्स बचे हुए हैं, तो उसे हम स्तूपा बोलते हैं। स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स? ट्रू, तो चलो इसको भी मानते हैं ट्रू है। एंड द थर्ड क्या है, स्तूपा वाज अ वोटिव एंड कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर इन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन। मतलब बुद्धिस्ट परंपरा में स्तूप क्या है, इट इज अ कमेमोरेटिव स्ट्रक्चर। मतलब यहाँ पे है, उनको याद के लिए बनाते हैं लोग। मतलब जो स्तूप जो है बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में उनके परंपरा को बढ़ाने के लिए और याद करने के लिए लोग बनाए हैं। ये भी सही है, बिकॉज द पीपल स्टार्टेड रिमेम्बरिंग स्तूपा। और
द पीपल रिमेंबर्स देयर ट्रेडिशंस, तो वो अपने याद बनाने, जैसे हिंदुइज्म में क्या है, टेम्पल्स बनाते हैं, मुस्लिम है मॉस्क्यूज वेयर दे गो एंड प्रे, इस तरह से चर्च है उनका, क्रिश्चियंस का। तो स्तूपा तो सही है, स्टेटमेंट तीनों सही लग रहा है हमें, है ना। तो वी विल हैव टू री रीड इट, हमें सही से पढ़ना है। इस पिछले साल का एक करंट अफेयर है, एक डिबेट था, जो स्तूपा वाज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिफोर द बर्थ ऑफ बुद्धा। बुद्धा का जन्म हुआ ना, उससे पहले स्तूप पहले से ही था। मतलब द कंसेप्ट ऑफ स्तूप, जैसे कंसेप्ट ऑफ टेम्पल, हम टेम्पल से कंपेयर करते हैं, टेम्पल तो बहुत पुराना है, तो स्तूप वाज आल्सो सो मच ओल्ड। मतलब बुद्धिस्ट ट्रेडिशन जो आया उससे पहले स्तूप था। द फर्स्ट स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, बट द सेकेंड दो स्टेटमेंट जो सही है। फर्स्ट क्या है, फॉल्स है, तो हम पहले चलते हैं, फर्स्ट इज अ फॉल्स, बिकॉज हम पहले ही जानते हैं, वी हैव रेड हिस्ट्री दैट स्तूपा वाज ऑलरेडी बिफोर 6th century BC, जब महावीर का जन्म हुआ था, महावीर का और बुद्ध का, तब जैनिज्म और बुद्धिज्म आया 6th century BC में, उससे पहले स्तूप था। इट क्लियरली मीन्स दैट द स्टेटमेंट 1 विल बी फॉल्स। नाउ ट्राई टू सॉल्व द आंसर। कैसे सॉल्व होगा? तो ओनली 2, why? But statement 3 is also true ना? हाँ, so we don't have a statement 3 in the option. But अगर आपको लगे कि 2 स्टेटमेंट सही है, this option is all 3. All 3 may not be our option. Why? 1 is not correct, है ना? It is incorrect. तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, none भी नहीं आएगा, that only 2 will be our options. But third भी आंसर सही है, third statement is true, but the third statement is not mentioned in the option. हाँ, तो ओनली 2 ट्रू सही है ना, तो 2 आएगा, ऑल नहीं आएगा, नन नहीं आएगा, 1 नहीं आएगा, है ना, इस तरह से। तो ये जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन कहाँ से आता है? एंशिएंट इंडिया से आ रहा है। द क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, एंड दिस क्वेश्चन कौन से टॉपिक से आ रहा है एंशिएंट इंडिया से? बुद्धिज्म इज वन टॉपिक, व्हाट मे बी द अदर टॉपिक? आर्ट एंड कल्चर हो गया, आर्किटेक्चर, अदर टॉपिक इंडियन सोर्सेज। व्हेन वी रीड इंडियन सोर्सेज वी रीड आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज पढ़ते हैं ना, वी रीड आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। इन द आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वी रीड मॉन्यूमेंट्स एंड स्तूपा इज अ पार्ट ऑफ मनी। तो 3 टॉपिक कवर कर रहा है ना। तो इस साल जो क्वेश्चन आया इंडियन हिस्ट्री से इस तरह से डिफाइन हुआ है ना। इस तरह से आप देखेंगे, दिस सोर्सेज इज बेस्ड ऑन द बुक, लिटरेचर बुक, हिस्ट्री लिटरेचर, स्पेशली जो नन, एंड दीज ऑल लिटरेचर्स आर विच टाइप ऑफ लिटरेचर? नॉन रिलीजियस जो लिटरेचर है, ये जो दिस लिटरेचर मिलिंगपना इज अ बुद्धिस्ट टेक्स्ट, है ना, बुद्धिस्ट रिलीजियस है। सो बुद्धिज्म से वी सी दैट देयर आर 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग, है ना। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड इन यूपीएससी दिस ईयर। अगर इफ यू सी द मेंस का हम देखते हैं, अगर दिस इज मेंस जीएस पेपर 1 2022, the questions, how many questions are here? 1 2 3 4 5 6 questions are there in GS paper 1. See the questions. Question 1, how will you explain that medieval Indian temple sculptures represent the social life of those days? मतलब medieval time में जो हमारे जितने भी आर्किटेक्चर्स बन रहे थे, उसके सोशल लाइफ को किस तरह से करता है। वन विल बी इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ में द स्टेजेस ऑफ द पीपल विल बी देयर। सो क्वेश्चंस आर डायरेक्टली फ्रॉम आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे हमें देखेंगे आर्ट एंड कल्चर क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? वाई डिड द ब्रिटिश आर्मी, है ना, एंड स्पेशली द ब्रिटिश आर्मी कैसे बनते थे? इंडियन सोल्जर्स वर देयर, सो हाउ डिड दे विन ओवर द प्रिंसली स्टेट्स? जो इंडिया के जो राजे थे, जैसे मराठाज वर देयर, निजाम थे, अवध वाज देयर, एंड देन मैसूर वाज देयर, पंजाब में सिख एम्पायर था। सो दीज एम्पायर्स वर पावरफुल, बट हाउ डिड दे बिकम सक्सेसफुल? ब्रिटिशर्स, हाँ, ये तो सब्सिडी अलायंस सिस्टम 1799 के बाद आया है ना। कंस्पिरेसी,
Okay. So first of all, they had defeated Bengal, right? Battle of 1759. Then 1764, they had defeated three empire, Bengal also, Awadh also, and Mughal Badshah, the Shah Alam Duti, and then he had to sign a Treaty of Allahabad. So 64, then finally they had the last level पे 1799 में किसको हराया था इन लोगों ने? They fought 4 battles with Mysores, है ना? In the battles where Nizam and Maratha supported Mysore, the British got defeated. मतलब वी सी जब वहां पे ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जब उन्होंने देखा कि when the Maratha and Hyderabad, Nizam and Mughal supported Mysore, Britishers got defeated. अगर आप सेकेंड मराठा बैटल पे जाएंगे, सेकेंड एंग्लो मराठा बैटल विच वाज फॉट इन विच ईयर? हाँ, सो 1802 में क्या हुआ? मराठा वाज अ कॉन्स्पिरेसी ऑफ 4 इंपॉर्टेंट क्लैंस. कौन था? सिंधिया, होलकर्स, गायकवाड्स एंड ऑल, एंड दे वर फाइटिंग टुगेदर. ये लोग आपस में ही लड़ रहे थे. तो हमने कॉन्स्पिरेसी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने बताया, इट इज ट्रू. तो यहाँ पे वी हैव टू सी सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इवेंट्स, battles, how they defeated, and what are the major point that led them to be successful. ये हमें लिखना है. तो हाँ, when they got defeated in American War of Independence, है ना, 17. So you already have read modern history. That's nice that you remember a lot of things. तो हमारा क्वेश्चन, this question is from modern Indian history से क्वेश्चन होते हैं. The third question is on Hamains. In 18th century, mid 18th century and 19th century में you have to take example from 1750 onwards. Hamains क्यों बढ़ रहे थे, है ना? आपने पढ़ा होगा कि फूड क्रॉप्स चेंज हो रहे थे इंडिया में. बट देयर वाज अ कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, देयर वाज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया. कैश क्रॉप्स की डिमांड बढ़ रही थी, इंडिगो की, टी की, कॉफ़ी की. ये सारे जो डिमांड बढ़ रहा था, देयर वाज नो रेलवे, कुछ प्रॉब्लम्स है तो सामान नहीं जा पा रहा है एक जगह से दूसरी जगह. तो दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. दीज थिंग्स आर ऑल्सो फ्रॉम एक क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से है, एंशिएंट हिस्ट्री से नहीं मिल रहा है हमें. जो अगला पॉइंट है स्टेट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में. स्टेट कैसे रीऑर्गेनाइज हो रहा है, जिससे बंगाल हुआ. टू सी इफ यू गो टू 1900, इफ यू सी द मैप ऑफ 1900 बंगाल, अभी का जो बंगाल का मैप देखा आपने, वेस्ट बंगाल, इट इज वेरी स्मॉल. इन 1900 द बंगाल वाज सो बिग. कितना बड़ा था पता है? हाँ, अगर हम एक मैप लेते हैं, इफ यू टेक वन मैप, जैसे मान लो ये मैप लेते हैं, लेट्स से दिस इज मगध, मीन्स दिस इज बिहार, है ना, दिस इज झारखंड, दिस इज वेस्ट बंगाल, राइट. लेट्स से दिस इज बांग्लादेश, असम. ये जो उस समय 1900 का बंगाल इतना बड़ा था, डिविजन्स देखने. देन दे डिवाइडेड दिस, दे ट्राई टू डिवाइड दिस बंगाल. देन इन 1911 द बिहार बिकेम इंडिपेंडेंस फ्रॉम बंगाल. इन 1935 द उड़ीसा बिकेम इंडिपेंडेंस फ्रॉम बिहार. बिहार और उड़ीसा साथ में जब बंगाल बना, और अब अभी नए राज्य में जब 2000 बना, इन 2000 झारखंड ऑल्सो बिकेम इंडिपेंडेंस. तो ये ऑर्गेनाइजेशंस पे ऑर्गेनाइजेशनल क्वेश्चंस है, इस पे हमें देखने की जरूरत है. एंड दिस क्वेश्चंस आर फ्रॉम देयर ओनली. एंड द लास्ट क्वेश्चन जो अभी डिबेटेड टॉपिक था, जो इफ यू सी द न्यू इंडियन पार्लियामेंट जो बनी है, उस पे लैंड पे डिबेट हुआ था ना पिछले साल. तो द क्वेश्चंस इज फ्रॉम विंसेंट. यहाँ पे पॉइंट है कि हमारे माइथोलॉजी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में बुल एंड लायन कैसे इंपॉर्टेंस रोल रहा है. तो हिस्ट्री में जो क्वेश्चंस रहते हैं जीएस पेपर 1 में, इन बोथ जीएस पेपर 1 and prelims, most of the questions will be motivated from current affairs. मतलब the questions will be from history. अगर आप 101 साल का जब हिंदू पढ़ेंगे, या when you read current affairs for your current affairs paper, है ना, separately जब पढ़ेंगे, तो you try to see how the current affairs are touching history. अगर लैंड पे डिबेट पिछले बार आया है तो क्वेश्चंस रहेगा वहाँ पे. इस साल बिटवीन नाउ, हाँ
हाँ, द क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दैट साइड। जैसे एक एक्सक्लेमेशन इंडस वैलीज पे हो गया, इंडस वैली सिविलाइजेशन पे, तो इट इज श्योर कि क्वेश्चंस मे बी फ्रॉम देयर। अगर एक क्वेश्चन आता है इंडस वैली पे, तो क्वेश्चंस विल बी टारगेटेड ऑन दैट ओनली। साइड से एक्सक्लेमेशंस हो गया, कोई रिसर्च आ गया हिस्ट्री में, आर एन डिबेट पे कोई रिसर्च, एनीथिंग। सो जो हम जो बुद्धा स्तूप का जो देखे थे, जो क्वेश्चन था वेदर इट वाज अ बुद्धिस्ट ओरिजिन और नॉट, पिछले साल डिबेट में था, एंड द क्वेश्चन एक्चुअली केम फ्रॉम देयर। वही एक ऑप्शन था, दैट वाज अ रॉन्ग ऑप्शन, अदरवाइज ऑल 2 ऑप्शंस वर करेक्ट। तो इसका मतलब सिंपल है कि हमारा आंसर जो हिस्ट्री का है, खासकर इन द प्रीलिम्स एंड इन द जीएस पेपर 1 आर मोटिवेटेड फ्रॉम करंट अफेयर्स, है ना, वो हमें देखना है। तो ये सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इफ यू सी द क्वेश्चन ऑफ 2018 का मैंने क्वेश्चंस आपको दिखाने के लिए लिया है। इफ यू सी दिस लास्ट क्वेश्चन, इट इज फ्रॉम जीएस पेपर 1 ऑलराइट। नो, इट्स अ जीएस पेपर 1 2018 जीएस पेपर 1 के क्वेश्चंस है। ऑप्शनल हम देख नहीं रहे हैं, ठीक है। इट इज फ्रॉम, ओह सॉरी, it is from 2028, all right, sorry. So the question is, communalism arises either due to power struggle or relative। उस समय 17 में कम्युनलिज्म का बहुत प्रॉब्लम चल रहा था, मतलब वी हैड सम रोइट्स देयर, और क्वेश्चन सीधे वहाँ से आया। एक क्वेश्चन वी विल स्टार्ट दिस फ्रॉम कोलोनियल इंडिया से स्टार्ट करेंगे, हाउ द कम्युनलिज्म स्टार्टेड इन इंडिया, हिंदू मुस्लिम डिवाइड कैसे हुआ, एंड देन वी विल कम टू कंटेम्पोरेरी टाइम। The questions are, this is from political science also similar, इंडियन सोसाइटी वाला जो पेपर है उससे भी क्वेश्चन सिमिलर रखता है, एंड हिस्ट्री से भी। तो तीनों पेपर पर पेपर 1 में है, so this is similar to इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर वाला क्वेश्चन है। द सेकंड क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंस ऑन द हाउ दिस ट्रेवलर्स चाइनीज एंड जैसे हंसन है, इत्सिंग है, मार्को पोलो है ना, अल्बर्नी है, इन बतूता है, तो उनकी राइटिंग्स है। वर्ड कितना है? 150 वर्ड्स में हमें लिखना है, एंड वी हैव मोर देन 7 to 8 ट्रेवलर्स। हाउ विल यू राइट? सो विल जस्ट हैव टू राइट देयर नेम, व्हेन दे केम, और एम्पेरर जिसके टाइम पे आया, एंड देयर बुक रिटन, द बुक दे हैव रिटन। नाम है तो स्कोरिंग पॉइंट हो जाएंगे, एंड देन राइट कि उन्होंने क्या स्पेशल लिखा है इंडिया के बारे में, व्हाट आर द स्पेशल पॉइंट इन 2-3 लाइन्स ओनली। हमें उतना डिटेल में नहीं जाना, and we will complete 150 words. The questions are from historical importance। महात्मा गांधी पे क्वेश्चंस हमेशा आता है, हर 3-4 साल के गैप में you will find a questions at least in mains। The questions must be there on महात्मा गांधी, और आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा ये सारे, इसलिए हमारा हिस्टोरिकल पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है ना, हमने ये देख लिया। अभी हम थोड़ा सा सिलेबस पे बात करते, सिलेबस पे अभी हम थोड़ा जाएंगे, मेंस ऑप्शनल का सिलेबस भी देखते हैं। पहले बात करते हैं बुक के बारे में, व्हाट आर द लाइक द बुक्स वी आर गोइंग टू कवर, है ना, और ये जो आपने पढ़ा है अभी तक, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस फ्रॉम यू। इफ यू गो टू द ऑप्शनल पर्सपेक्टिव, सो व्हिच आर द बुक्स बाय आर ऑफर्ड? उपिंदर सिंह इज फॉर एंशिएंट इंडिया, वेरी नाइस, एंड देन मिडिवल हिस्ट्री के लिए सतीश चंद्रा है, मॉडर्न के लिए सो यू हैव रेड BL ग्रोवर, बिपिन चंद्रा। ओके, बिपिन चंद्रा हैज रिटन मेनी बुक ऑन मॉडर्न इंडिया, बट 2 बुक पढ़ते हैं हम उसका ना, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, सो वी रीड 3 ऑफ हिज बुक। बिपिन चंद्रा का इफ यू रीड, हेलो, इफ यू रीड बिपिन चंद्रा, वी रीड 3 ऑफ हिज बुक, है ना। कौन से 3 बुक पढ़ते हैं? इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस वी स्टार्ट फ्रॉम 1857 ऑनवर्ड्स, 1947 जाता है। बिफोर 1857 कौन सी बुक पढ़ते हैं उनका? हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, दैट इज बाय द NCERT, ओल्ड NCERT था, एंड इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वी स्टार्ट फ्रॉम 1947 ऑनवर्ड्स। इंडिपेंडेंस हिस्ट्री, इंडिपेंडेंट हिस्ट्री के लिए हम 2 बुक प्रीफर करते हैं। द वन बुक इज रामचंद्र गुहा, इंडिया आफ्टर गांधी, एंड अदर इज इंडिया इंडिपेंडेंस, ना। आप लोगों ने रामचंद्र गुहा के बुक का नाम सुना है? दीज आर द स्पेशल बुक्स फॉर हिस्ट्री। जो प्राइमरी बुक है, ए बुक, दीज आर द इम्पोर्टेंट, लाइक RS शर्मा, सतीश चंद्रा एंड बिपिन चंद्रा,
दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बुक टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री। जो आपका जो प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव है इसमें बहुत अच्छा से दिया हुआ है। दिस बुक इज रिटन बाय पूनम दलाल दहिया, आपने देखा होगा इस बुक को। दिस इज बाय टाटा मैकमिल, है ना, इनके द्वारा पब्लिश है। दिस बुक इज बाय सोनाली बंसल एंड स्नेहल त्रिपाठी, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। एंड उपिंदर सिंह यू हैव एनसीईआरटी वर्ल्ड हिस्ट्री की हम रिफर करते हैं, नॉर्मल लॉ की बुक है, तो बहुत अच्छी बुक है। आपने देखा है ये बुक? देखा है ना, गुड। नहीं देखा है तो डाउनलोड कर लेना और आई विल शेयर विद यू विथ सॉफ्ट कॉपी, ठीक है। देन इन द स्पेशल कैटेगरी दीज बुक्स आर इम्पोर्टेंट एंड you should read one out of these two books. One is by Bipin Chandra and his associate historians, another is by रामचंद्र गुहा। ये बहुत अच्छी बुक है। इन दोनों बुक के अंतर जानते हैं? डू यू नो व्हाट इज मेन डिफरेंस बिटवीन दिस टू बुक? द आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट। बिपिन चंद्रा के बारे में बात करें तो बिपिन चंद्रा कहाँ से आपको पता है? हिज एकेडमिक एफिलिएशन JNU. He is from Jawaharlal Nehru University. And when Jawaharlal Nehru University was found in 1969, he was made the chairman of that Center for Historical Studies, है ना? And he had been supported, funded by the government of that time. And who was the government? Indian National Congress, Indira Gandhi and all, है ना? So whenever he writes about the history, you will find that he had been particularly some type of biasness towards Congress. मतलब if you see the emergency जो period है 1975, 76, 77 वाला, तो if you read his chapter on emergency and read chapter on emergency from Ramchandra, you will find differences. Bipin Chandra will not be critical to Congress and emergency. तो इसीलिए if you see the UPSC patterns, the people says to read Ramchandra Guha instead of Bipin Chandra, ठीक है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में भी सेम चीज है। आई विल सजेस्ट टू रीड शेखर बंदोपाध्याय बुक द प्लासी टू पार्टीशन इंस्टीड ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। इसमें भी सेम इशू है ना। सो फॉर द ऑप्शनल पेपर यू शुड रीड इवन BL जो ग्रोवर की जो बुक आपने पढ़ा है ना, if you have time to revise, so do not revise from Grover, you can read it from ये बुक से आप रिवाइज कर लेना, because you have already read that book, so you know what is written there. So try to see this book. आपने ये बुक देखा है, प्लासी टू पार्टीशन? It's all right. You will have the notes ना, टीचर ने नोट्स दिया है, when you revise. So see मेंस आपका कब होगा? अगले साल होगा, है ना? If you keep prelims next year, है ना? So when you get time, you read this book instead of reading Grover. अब वो भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होगा, कुछ क्वेश्चंस आइडियोलॉजिकली क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे सही से। कुछ आइडियोलॉजिकल क्वेश्चन ऐसे ट्रिकी होते हैं दैट मे नॉट बी सॉल्व फ्रॉम ग्रोवर बुक। तो चंद्रा का जो है जो बुक है शेखर बंदोपाध्याय, सो हिज राइटर नेम इज शेखर बंदोपाध्याय एंड द बुक नेम इज प्लासी टू पार्टीशन एंड आफ्टर। तो हिज बुक्स कवर्स टिल 1964, जो लेटेस्ट बुक है इनकी इस तरह से आता है। तो ये हमारा बेसिकली सिलेबस है हिस्ट्री का, इस तरह से हम देखते हैं। अगर हम टॉपिकल बात करते हैं, जो इफ वी सी द सिलेबस ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल, है ना, ऑप्शनल का अगर हम सिलेबस देखते हैं, आई विल जस्ट राइट फॉर यू, ओके, इट्स नॉट क्लियर। If you see the optional syllabus, the optional will cover from ancient time. It will cover from ancient time in India, and this is similar to prelims syllabus. जो prelims में syllabus है, but it has world history also and some ideological concepts, questions वगैरह है, वो हम सिलेबस देखते हैं अभी, ठीक है। वर्ल्ड जब हम सिलेबस देखते हैं फिर ये बात करते हैं। ओके, लेट मी सी द सिलेबस फर्स्ट।
If you see the syllabus, this will start from sources of Indian history. Then there will be Indus Valley Civilization, Mauryan Empire, post-Mauryan Empire, Guptas and all. And this will come to the Indian independence. ठीक है, Indian independence तक आ जाएगा. Then in modern India, there will be the Europeans, how Europeans came in India. Which time? They came to India by 1600, है ना? So after 1600, they started coming to India, in India, है ना? And then there will be the establishment of empire after 1857. Then in 1947, we got independence. And then we have a syllabus from after independence also. You see, if you see the syllabus, the consolidation as a nation, Nehru's foreign policy, integration of princely state, question of national language, caste and all. In the world history, we have enlightenment. So before enlightenment, you understand Renaissance. Before Renaissance, what was there in the world? ये सब हमें समझना है. When we reach the world history, the syllabus starts from enlightenment and modern areas. But we have to discuss what was before that period. Ancient world में क्या था, medieval world में क्या था. So we will discuss that, है ना? So that will be very much important to understand enlightenment and after. Then there will be the rise of socialist ideas, modern politics, American Revolution, French Revolution, American Civil War and all. So these are the world topic, and then there will be Russian Revolution, there will be Latin American Revolution, there will be colonialism. So these are the important topics for the world history. And then also it covers the world after World War II, especially the emergence of two power blocks, UNO and global disputes, which is similar to political science papers also. So there are some portions in our world history syllabus which also covers political science, है ना? I will share this syllabus with you, ठीक है? जो these are teaching plans, इतने हफ्ते में हमारा teaching complete होगा. It is according to that we will take how much time for ancient, medieval and world history. एक plan है इसका. तो world history इस तरह से जाता है. तो ये हमारा briefly this was a discussion on the syllabus, the types of questions which have been asked in exam. इस तरह से आता है. Then let us look at the mains optional history question paper. इस साल का वो देखते हैं. And then we will go into the some historical topic today, है ना? ओरिएंटेशन के टाइप पे उस पे हम जाते हैं, फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है? If you see, have you seen the question paper? How many questions we have to do in mains? How many questions we have to write? And how many questions are there? 8. Out of 8 we have to write 5. Question 1 and 5 are compulsory in this, है ना? One question is math based questions, है ना? एक क्वेश्चन हमेशा मैथ बेस्ड होता है. ये आपको दिख नहीं रहा होगा, राइट? So these type of question is a math based. If you see the question, and this question is not math based, na? If you see this question, critically examine the following statements in about 150 words, and there are 5 questions, है ना, in this. The first question is, Rousseau kindled a hope which became the spirit of enlightenment. रूसो का जो राइटिंग्स था, रूसो कौन से टाइम पीरियड के थे? फ्रेंच रेवोल्यूशन, हिज आइडियाज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. तो उनके रूसो के साथ में और कौन थे? वोल्टेयर एंड मॉन्टेस्क्यू. तो उनके जो राइटिंग्स है, तो इट इज फ्रॉम वर्ल्ड हिस्ट्री. अदर इज कोडिफिकेशन ऑफ फ्रेंच लॉ वाज परहैप्स द मोस्ट एंड्यूरिंग ऑफ नेपोलियंस अचीवमेंट. नेपोलियन जब राजा बना, व्हेन ही बिकम किंग, इन विच ईयर? हाँ, तो आपको दोनों सही है. See, in what happened? In 1789, French Revolution happened, है ना? The king was killed, guillotined in 1792. Robespierre came after that, and he ruled till 1794. 4 to 99, a different democratic governments ruled France. So there was a democratic type of institution in France. And in 79,
the Napoleon overthrown the previous rule and he became a leader. But he became, मतलब 79 में उनका रूल स्टार्ट हो जाता है, but he became king in 4. So that is a कौन आंसर दिया था 1799? ओके, तो इस तरह से यहाँ से देखते हैं. So फ्रांस में तो whatever changes brought by him we have to discuss. So world history में the questions is also from world history. Then question दूसरा कौन सा है? Engels did much more than Marx himself to popularize the ideas of Marxism. ये सारे जो concept है ये 1840s and 1850s के हैं. तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स बोथ वर फ्रेंड्स, और इन लोगों ने किस तरह से काम किया, ये सिलेबस आर देयर. सो थ्रू आउट अ पीरियड ऑफ टाइम वी विल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, है ना. इस तरह से आ रहा है. इफ यू सी द अदर क्वेश्चंस, द फर्स्ट रिफॉर्मेशन एक्ट 1832 occupies a significant place in the constitutional development of Britain. तो ब्रिटेन की हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछ रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में, है ना. So these are the questions. If you see the questions, do you agree that the economic effects of the Industrial Revolution were to add enormously to wealth and capital on the one hand and to degrade the masses to the permanent poverty as the other? Capitalism, socialism से related questions है. ये सारे questions हम लोग over a period of time cover करेंगे. Today you do one thing, you read the syllabus. अपने पढ़ाई होगा. You at least see at least previous 5 or 10 years questions देखो आप. If you do not have, I will send it to you. Have a look on that and then we will discuss sometime in the other classes. ठीक है. तो हमने देखा today we discussed the syllabus, discussed the book which to be covered, है ना. अब point है what will be our strategy. हमारा strategy क्या रहेगा? That we will discuss ancient history, medieval history and world history. I will do one thing. I will provide you a typed note, PDF form में आपको notes दूंगा on all the topics I will be teaching for this paper, है ना. The notes will be ready with you before the class. Your job will be to reading the notes before coming to the class. Class से आने से पहले वो notes पढ़ लेना, है ना. So then we will have a interactive session. We will discuss the topic. जो भी notes रहेगा उस topic में we will discuss it. We will analyze all the events. Notes will be as per your prelims, GS paper 1 and mains writing. इस बेस हाँ प्रिंटेड भी रह सकता है, मतलब अभी सेंड टू द ऑफिस टू यू ऑल्सो. तो एडवांस में आपको मैं वर्ड में दे दूंगा, PDF में. हाँ, इट विल गेट अ टॉपिक वाइज. नो टॉपिक वाइज मिलेगा आपको, ठीक है. यू विल गेट अ टॉपिक वाइज नोट्स. आई विल आस्क देम टू प्रिंट इट, गिव इट टू यू. अगर प्रिंट देते हैं ना ये लोग तो यू विल गेट अ प्रिंटेड वन. Okay, so I will ask them. You will get it. Okay, I will ask them. So you will get a notes, but the point is, we will not be limited to the notes only. है ना? We will have maps. We will have more discussions on that. है ना? उस तरह से हम लोग समझेंगे. अभी मैं आपको कुछ important चीज बता रहा हूँ, which will relate you to the topic, to the history. History में interest भी बढ़ाएगा. आपको समझाएगा भी हिस्ट्री क्या होता है, कैसे होता है, टफ कैसे होता है. सो आज हम हिस्ट्री के कुछ ऐसे टॉपिक्स बात करेंगे जो आपको हिस्ट्री प्रति लाएगा, है ना, विच विल अटैच टुवर्ड्स हिस्ट्री. ठीक है, उस पर हम बात करते हैं. अभी सबसे पहला स्टार्ट होता है इंटरेक्टिव सेशन में, व्हाट इज हिस्ट्री. हमने सिलेबस वगैरह देखा. हिस्ट्री है क्या? हिस्ट्री विल नॉट ओनली हेल्प यू इन प्रेजेंट टाइम प्रिपेयरिंग योर एग्जामिनेशंस. इट विल नॉट ओनली हेल्प यू in clearing your UPSC examinations. It will help in future also. When you become an IAS officer, IFS officer, IPS, you will have to take many such decisions. There is a simple statement in everyday life. History repeats itself. सुना होगा आपने? कैसे रिपीट करता है? एक हिस्टोरियन है, his name is E.H. Carr. क्या नाम है उनका? E.H. Carr, and he has written a book called What is History. You know, he was not a historian. He was diplomat, political scientist थे, diplomat थे. उन्होंने हिस्ट्री लिखा, What is History. और उनका एक स्टेटमेंट था, हिस्ट्री इज ए कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. समझ में आ रहा है? हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पास्ट एंड प्रेजेंट. जैसे मान लो एंशिएंट टाइम में कुछ भी चीज़ हुआ हो, दंगे हुए हो, पार्टीशन एग्जाम्पल ले लो. वी ऑलवेज गो थ्रू पार्टीशन. अभी रिसेंटली आपने न्यूज़ पढ़ा होगा, दंगे हो रहे थे फरीदाबाद में और हाँ
गुड़गांव में। दंगे क्यों हुए? व्हाट इज द मेन सोल रीजन ऑफ दैट राइट्स, बताओ। हाँ, एक मूवी रिलीज हुई है ना अभी, हाँ, उसके वजह से हो रही थी। मतलब जो ट्रेलर्स आया, बहुत सारे चीज़ें आया, एंड ये सब ट्रेसिस कहाँ से आता है? वाई द हिंदूज हैव हेट्रेड टुवर्ड्स मुस्लिम? इट इज बिकॉज ऑफ द कम्युनलिज्म अरोज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी इंडिया। इंडिया में पहले कम्युनलिज्म था ही नहीं। वी डू नॉट हैव एनी ट्रेसेस ऑफ कम्युनलिज्म। कम्युनलिज्म का मतलब आप लोग समझते हैं क्या होता है? सांप्रदायिकता। हाँ, बताओ। इफ यू सी कम्युनलिज्म, लेट्स से, ये वर्ड कैसे बनता है, किस वर्ड से बना हुआ है? तो इसका मतलब हाउ दिस इज अ रॉन्ग वर्ड, दिस इज अबाउट इन 19th century India there was no communalism. If we talk about community, तो 19th century में कम्युनिटी मतलब नेशन भी हो सकता था। कम्युनिटी आज इंडिया एज ए कम्युनिटी नहीं हो सकता है। इन 19th century we were a community, so communalism was a good thing. In the 20th century इसका मतलब बदला। बिपिन चंद्रा सेज कम्युनलिज्म 3 तरह से होता है। इन द फर्स्ट स्टेज, सपोज इफ वी आर फ्रॉम डिफरेंट कम्युनिटी, we will have a feeling that we are a different. Second stage में we will think if we are a different, why are we not living together? है ना? इसके बीच में है I am best, you are not best. ये जो presumptions है, हिंदू बेस्ट है या मुस्लिम बेस्ट है, इससे अराइज हुआ है। एंड दिस ऑल थिंग्स वर डन बाय द ब्रिटिशर्स। आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा होगा तो डिटेल में पढ़ा होगा कम्युनिज्म का, उतना हम डिटेल में नहीं जा रहे हैं। पर हिस्ट्री एग्जाम्पल ले रहे हैं, रिपीट करता है हमेशा। हिस्ट्री ऑलवेज रिपीट्स। आप फ्यूचर में कोई भी डिसीजन ले रहे हो, आप हिस्ट्री से सीख सकते हैं। अकबर ने क्या अच्छा डिसीजन लिया था, अशोका ने क्या अच्छा डिसीजन लिया था। हिस्ट्री विल टीच यू द इम्पॉसिबल इज नथिंग। अम्बेडकर वॉज सो ए स्मॉल पर्सन, है ना, फ्रॉम बैकवर्ड क्लास। ही वॉज अ वेल रेड पर्सन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट असेंबली। सबसे बड़े पढ़े लिखे आदमी तो वही थे ना, अम्बेडकर। गांधी क्या थे? ही वॉज अ नॉर्मल पर्सन एंड ही वॉज अलोन विद हिज धोती। ये धोती पहनते थे एंड ही हैड डिफीटेड द ब्रिटिशर्स। संभव था देश से आजादी लड़ना। तो हिस्ट्री टेल्स अस मेनी थिंग, है ना, बहुत सारा चीज़ बताता है। तो हिस्ट्री इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अब हिस्टोरिकल टाइम पे जाते हैं। हिस्ट्री तो हमने देखा ये है। अब हिस्ट्री से किसी को हरा भी सकते हैं। जैसे मान लीजिए सामने वाला दोस्त है ना, इफ़ यू हैव टू डिफीट हिम, हिस्ट्री से कैसे हराएंगे उसे, बताओ कैसे? जैसे ये दो दोस्त है ना, मान लो यू आर 2 पीपल, दोस्त भी तो दुश्मन बनते हैं। इन 1858 व्हाट हैपेंड? ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया क्या प्रोक्लेम किया? नाउ द इंडियंस आर माई सब्जेक्ट। 1858 में बोला ना कि इंडियंस क्या है मेरा सब्जेक्ट, सिटीजन नहीं बोला था, सब्जेक्ट बोला, ठीक है। और 1858 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने डायरेक्टली इंडिया पे रूल करना शुरू किया। बिफोर 1858 इट वाज द ईस्ट इंडिया कंपनी, इट वाज अ कमर्शियल कंपनी हु वाज रूलिंग इंडिया। बोला तो उन्होंने बोला ना, वो तो दोस्त ही थे ना, अकॉर्डिंग टू वो बोला कि इंडियंस मेरे बच्चे हैं, तो वो तो पेरेंट्स हो गए, और वो दुश्मन कैसे बनने वाले, जैसे दोस्त आपने बोला। तो आपने हिस्ट्री से डिफीट कैसे करोगे, उसको मैं पूछ रहा हूँ। अगर आपको दोस्त को हराना है, so you will try to demoralize him. कैसे? You can tell about his past. Your past was not good. Your father is not good. And your family member का past history बेकार है। Demoralize नहीं होगा। You tell him about बिहार से कोई है। You tell the bad things of बिहार. बिहार के लोग ऐसे आते हैं तो ऐसे रहते हैं। So you demoralize the things. The history had been taken to defeat someone. You can defeat your friends by history. जैसे ब्रिटिशर्स ने किया। When the Britishers came to India, they took history as a subject to defeat Indians. आपने पढ़ा होगा मॉडर्न इंडिया में। एग्जाम्पल दो कोई, कौन एग्जाम्पल देगा? The Britishers took history as a subject to defeat Indians. Defeat Indians मतलब कोई एग्जाम्पल है आप लोगों के पास? Britishers took history as a main tool to defeat Indians.
एग्जैक्टली जिसके बेसिस पे हम उसे कुछ बोल सकें। जैसे अभी एनालाइज करके बोलते हैं कि उस टाइम पीरियड का है, तो ये चीज हमारे पास ब्रिटिशर्स से पहले की उन्हें लगता था, ब्रिटिशर्स बोलते थे कि हमने दिया है। ठीक, ऑल राइट। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, यू नो दैट दे हैड बीन डिफीटिंग इंडियन एम्पायर्स, इंडियन को हराया। सबसे पहले किसको हराया हमने देखा, बंगाल, देन अवध, मुगल्स, मैसूर, मराठा, सिख एंड स्लोली झांसी वगैरह सतारा, सबको 1857 तक हरा दिया। 1857 में इंडिया में दो ही तरह के स्टेट था, वन वाज ब्रिटिश एम्पायर एंड अनदर वाज प्रिंसली स्टेट, एंड ऑल द प्रिंसली स्टेट हैड ऑलरेडी साइंड अ ट्रीटी, सब्सिडी अलायंस सिस्टम, तो नो वन वाज फ्री। एक प्रिंसली स्टेट था, एक वो था। अब इनको रूल बनाए रखना था, इन्होंने नया नया डिफिनेशंस लाना शुरू किए। सबसे पहला हिस्ट्री को इंडियंस को हराने का इस्तेमाल किया जेम्स मिल ने। उन्होंने एक बुक लिखा था, आपको बुक का नाम याद है? आपने मॉडर्न इंडिया पढ़ा है ना? ब्रिटिश हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया लिखा था, उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पार्ट्स में बना हुआ, एंशिएंट इंडिया, मिडिवल इंडिया, मॉडर्न इंडिया। तो इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, क्योंकि वो उसको ब्रिटिश इंडिया मानते थे, तो इन एंशिएंट इंडिया में क्या बोला, दैट एंशिएंट इंडिया वाज रूल्ड बाय हिंदूज, मुस्लिम, मिडिवल इंडिया वाज रूल्ड बाय इस्लाम एंड मुस्लिम, एंड मॉडर्न इंडिया शुड बी रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स। वो क्लेम कर रहे थे। और कब बुक लिख रहे थे? ये बुक लिखा गया था 1818 में। 1818 में व्हेन दे वर डिफीटिंग मराठाज, 1818 में जब मराठा को हरा रहे थे, थर्ड एंग्लो मराठा वार जो हो रहा था, उस समय जेम्स मिल वाज राइटिंग कि इंडिया में क्या हो रहा है। सिर्फ ये नहीं बोल रहे, दे वर सेइंग इंडियन रूलर जो है ना डिस्पोटिक। एक वर्ड आया था, इन्होंने इस्तेमाल किया था, दैट वर्ड नेम इज ओरिएंटल डिस्पोटिज्म। याद आया? ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो दिस ओरिएंटल डिस्पोटिज्म वर्ड, इसका मतलब, ओरिएंटल मतलब क्या होता है बताओ? ईस्ट, डिस्पोटिज्म मतलब हाँ मनमानी करना, डिस्पोटिक, निरंकुश, एब्सोल्यूट जो लोग होते हैं। इनका मानना था जो इंडियन रूलर्स जो थे ना, दे वर डिस्पोटिक। जो ओरिएंटल मतलब ईस्ट वाले, डिस्पोटिक मतलब देयर मेन जॉब ऑफ रूलिंग इज टू कलेक्ट रेवेन्यूज ओनली। उनको सिर्फ रेवेन्यू से मतलब है, दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड देयर सिटीजन। ये लोग बोले दे वर नॉट रिप्रेजेंटेटिव, मतलब इन लोगों ने इंडियन राजा को एब्यूज किया। दे हैड अ लैक ऑफ रेशनैलिटी, उनमें सोचने की क्षमता, विवेक ही नहीं है। उन्होंने बोला कि इंडिया के पास टाइम सेंस नहीं है, इंडिया के पास हिस्ट्री नहीं है, इंडिया के पास इंडिविजुअलिटी नहीं है, मतलब इंडियंस हैड नो इंडिविजुअलिटी, मतलब एक एक आदमी को रूल किया जाए सही से वो नहीं है ना। तो इन्होंने इस तरह से राइटिंग किया कि दे ह्यूमिलेटेड इंडियंस, ताकि इंडियंस को ऐसा लगे बैकवर्ड है, इन्फीरियर है। तो आप समझे कि किसी तरह से डिफीट कर सकते हैं। The Britishers had defeated Indians through history these ways. ये दूसरा जेम्स मिल तो ये था, ये दूसरा आदमी था, उसका नाम था मैक्स म्यूलर। मैक्स म्यूलर ने डिबेट लाया, आर्यन डिबेट। और आर्यन डिबेट से क्या बोला? उन्होंने बोला यू आर ऑल्सो आर्यन, वी आर ऑल्सो आर्यन, होता है ना। द आर्यंस माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया। उन्होंने बोला द आर्यंस हु वेंट टू द वेस्ट, जो हम हैं, मतलब ब्रिटिशर जो है, they become politically active, they had a sense of state का सेंस है, एक्टिव है, they are scientific। ये सेंट्रल एशिया है, ठीक है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। तो वेस्ट के प्रति जो लोग गए थे, दे आर पॉलिटिकली एक्टिव, साइंटिफिक है। और जो ईस्ट आए थे, इन्होंने बोला ये लोग एक्टिव थे, एंड द पीपल हु केम टू ईस्ट दे वर पैसिव। पैसिव मतलब समझते हो ना, एक्टिव विल रूल एंड पैसिव विल बी रूल्ड। ये बोले दे आर रिलीजियस, फिलोसफिकल, दे आर साइंटिफिक। इस तरह से ये बोले कि आर्यन जो आए थे यहाँ पे, दे आर इन्फीरियर्स। और इन्होंने नई इन्फीरियर एंड इन्होंने जो नई थ्योरी दिया, उस थ्योरी का नाम था वाइट मैन्स बर्डन। नाउ दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द वाइट पीपल, मतलब दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सिविलाइज इंडियंस। ऐसा थ्योरी इन्होंने दिया। तो थ्रू हिस्ट्री अब समझ में आ रहा है, यू कैन डिफीट द पीपल, है ना, एंड दे हैड डिफीटेड अस। उन्होंने आर्मी से नहीं हराया था। आर्मी किसका था? आर्मी तो इंडियंस ही था। 1857 में बैटल भी तो हो गया था, हम हार गए थे। बट यू रिमेंबर
1857 का बैटल कब स्टार्ट हुआ? 10th में 1857 इट स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ एंड 11th में सारे रेबल्स दिल्ली आ गए थे। दिल्ली में 13 मई तक, मतलब 2 दिन बाद, बाई 13th में ऑल द ब्रिटिशर्स हैड लेफ्ट दिल्ली। 13 मई तक या तो सब मारे गए थे या सब भाग गए थे दिल्ली से। उसके बाद वो लोग सितंबर में वापस आए दिल्ली। मतलब मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 महीने तक दिल्ली में थे ही नहीं। इतना पावरफुल था इंडियन, मतलब जो सोल्जर थे मेरठ से जो आए थे। क्यों नहीं आ पाए? उनका ट्रेंड जो था ना, उनकी आर्मी अंबाला में रही हुई थी और उनके पास हाथी घोड़े सब बेच दिए थे इन्होंने। बंगाल आर्मी जो थी ना, कहाँ पे थी उस समय? पंजाब में। क्यों? क्योंकि उन्होंने रंजीत सिंह, उनके जो सक्सेसर था दिलीप सिंह, उनसे लड़ना था। तो ऑल द आर्मी वर स्टेशन इन अंबाला, पंजाब, इन सारे रीजन में थे। इनका जो ऑफिसर कहाँ था, गवर्नर जनरल कहाँ बैठे हुए थे? शिमला। उस समय 2 राजधानी होती थी ना, कलकत्ता एंड समर कैपिटल। सो इनके जो ऑफिसर्स, कमांडर इन चीफ सब शिमला में थे। तो 4 महीने तक इंडियन में रूल किया इन लोगों ने। तो मतलब सिंपल है कि आर्मी भी इंडियन है, तो इट वाज वेरी टफ फॉर देम टू कंट्रोल इंडियंस ना विद इंडियन आर्मी। तो इन्होंने क्या किया? आइडिया लाया, विचार लाया, है ना, एंड दे ट्राई टू फूल इंडियंस दैट यू आर इंफीरियर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आप पे रूल करें। क्यों रूल करें? तो आपके राजा आप पे रूल ही नहीं कर सकते सही से, बिकॉज दे आर अनरिप्रेजेंटेटिव, डिस्पोटिक है, ये सब है। तो हिस्ट्री से इन लोगों ने ऐसे हराया। ये तो हिस्ट्री का हमें सब्जेक्ट था, इस तरह से डिवाइड किया। दूसरी हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंट चीज होती है? काल, टाइम इंपॉर्टेंट, पीरियड इंपॉर्टेंट होता है। पीरियड में कैसे? जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल होता है। सेंचुरी 1, 2, 3, 4 है ना, 500, 600, 400। मेन डिवीजन हिस्ट्री में होता है एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न का। आप सबने सुना होगा, सुना है ना? एंशिएंट हिस्ट्री, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। तो डिवीजन कैसे हुआ है पता है? कौन बताएगा? इंडिया में एंशिएंट हिस्ट्री कब तक रहता है? वो उस पर हम थोड़ा बात करते हैं अभी, ठीक है? हाँ, तो आपने ये समझा कि हिस्ट्री से हम कैसे हरा सकते हैं। एक मैंने वीडियोस बनाया है इस पे, 2 वीडियोस है। प्लूटस IAS का यूट्यूब चैनल है ना, उस पर देखना। एक वीडियो है कि हाउ डिड ब्रिटिश कंट्रोल अस, मतलब मॉडर्न टाइम में। पहले तो हमें हराना अलग बात थी, पर उन्होंने हमें कंट्रोल कैसे किया, उस पर छोटी सी 15 मिनट की वीडियोज़ है, यू कैन वॉच। मतलब उसमें मेन आइडियोलॉजी उन्होंने लाया, 4 आइडियोलॉजी, उस पर मैंने वीडियो बनाया, आपने देखना। सम टाइम वी विल डिस्कस। दूसरा है आर्यन डिबेट पे, मेंस पे आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है? तो देखिए, अब पॉइंट है, हम पीरियडाइजेशन पे आते हैं। अभी स्पेस हमारे पास है, चलो इस पे ही बात करते हैं। इट विल बी विजिबल टू यू। कोई पेज है स्पेस बचा हुआ? I want to take a इस स्लाइड से आपको दिख रहा है ना आप लोगों को? If you open this slide, this is not been shared online. Then let me not use this one. Okay, I will take the other boards. तो normal page लेते हैं। चलो, latest right here. So do you know what happened? If we take examples of ancient, medieval, modern, है ना? This is India and this is world. In India, ancient period according to this Britishers and all, इनके अनुसार तो स्टार्ट होता है ancient period। जो ब्रिटिशर्स क्या बोला? हिंदू मतलब ancient, मुस्लिम मतलब medieval and ब्रिटिश जब से आए तब से टाइम उनकी टाइम लेते हैं। तो 1200 तक क्या हुआ? एंशिएंट हो गया इनके अनुसार, जेम्स मिल के अनुसार, है ना? फिर ए हो गया एंशिएंट। 1200 टू 1750 ले लो, क्या हो गया है? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स। एंड देन 750 ऑनवर्ड्स क्या हो गया? मॉडर्न पीरियड हो गया, ठीक है? अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स दीज आर द डिविजन्स। इंडियन हिस्टोरियन इसको मानते हैं कि 1200 में भी इसको बोलते हैं 750 टू 1200
is considered as an early medieval period in India. And they call it this period as a early medieval period. But the most important point in the world history, how they categorize their periods. ये सारे पीरियड कौन बनाया इंडिया में? ब्रिटिशर्स ने बनाया. उनका देखते हैं उनका कैसा हिस्ट्री है. दे से द 9th सेंचुरी, 9th सेंचुरी में एक बहुत बड़ा पावरफुल एम्पायर था वर्ल्ड में, ग्रीको रोमन एम्पायर. सो ग्रीको रोमन एम्पायर डिक्लाइन इन द 9th सेंचुरी. तो ये हो गया एंशियंट. 9th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी, ये जो पीरियड है, दिस पीरियड इज कंसिडर्ड एज मिडिवल पीरियड. 9th सेंचुरी में क्या हुआ था पता है? जब ग्रीको रोमन एम्पायर डिक्लाइन, आपने वर्ड सुना है फ्यूडलिज्म? फ्यूडलिज्म क्या होता है? ठीक है. तो आप जानते हैं फ्यूडलिज्म के बारे में क्या? सेम ही. तो फ्यूडलिज्म कहाँ पे आया था? इंडिया में कहाँ आया था? ब्रिटेन में, यूरोप में, है ना. यूरोप में फ्यूडलिज्म आया. तो 9th सेंचुरी तक क्या था? पूरे वर्ल्ड में एक पावरफुल एम्पायर था. क्या था? देयर वाज अ पावरफुल एम्पायर इन द होल वर्ल्ड. अब फ्यूडलिज्म कैसा है मैं बताता हूँ. उस समय क्या हुआ, मिलिट्री जो था एक स्टेट के अंदर था. एक एग्जाम्पल लेते हैं. लेट से देयर आर 4 or 5 पावरफुल स्टेट इन द वर्ल्ड. यूरोप में पूरा 4-5 पावरफुल एम्पायर है. एम्पायर इज डिपेंडेंट अपॉन लीडर्स एंड मिलिट्री पर्सन. जैसे मुगल में नहीं था जागीर सिस्टम. जागीर का क्या काम था? उनको सैलरी के बदला जागीर मिल जाती थी मनसब को, एंड वो आर्मी मेंटेन करते थे. मान लो 5 स्टेट है और उसके राज्य ने क्या बोला कि अपने अपने सामंत को आर्मी मेंटेन करने के लिए दे दिया. जब जरूरत पड़ेगा, स्टेट ए हैड टू फाइट विद स्टेट बी. ए को बी से फाइट करना है, उसे क्या चाहिए? आर्मी चाहिए. स्टेट ए ने आर्मी पहले से मेंटेन किया है. नाउ द स्टेट ए हैड टू फाइट विद स्टेट बी. नाउ व्हाट विल हैपन? स्टेट ए नीड्स आर्मी, जो आर्मी पहले से उसके पास है, मेंटेन है. नाउ द फ्यूडल लॉर्ड्स हु हैड आर्मी विल नॉट सपोर्ट स्टेट ए, he will support state B. जो स्टेट बी का आर्मी नहीं है, तो स्टेट ए क्या होगा? स्टेट ए विल बी डिफीटेड. तो उसके पास आर्मी नहीं. समझ में आ रहा है? अभी मैं समझा. देयर आर 3 स्टेट्स है ना. ये 3 बड़े बड़े स्टेट्स है. दीज आर द रूलर्स, स्टेट ए, स्टेट बी एंड स्टेट सी. मैं फ्यूडलिज्म राइज कैसे हो रहा है वो बता रहा हूँ आपको. ठीक है. तो सपोज इनके पास बहुत सारे आर्मीज हैं. स्टेट ए हैज लेट्स से 5 फ्यूडल लॉर्ड्स. उनके पास आर्मी है. ईच हैज टू फाइट विद स्टेट बी. नाउ दीज फ्यूडल लॉर्ड जो इनका है, स्टेट ए का है, विल सपोर्ट स्टेट बी. इसने इसको मदद कर दिया तो क्या होगा? स्टेट अपने आप हार जाएगा. अब बी क्या होगा? नहीं. पावरफुल कौन होगा? फ्यूडल लॉर्ड्स विल बी पावरफुल बिकॉज इसने इसको सपोर्ट किया है. सो द एम्पेरर विल बी वीक. ये तो पहले ही हार गया. अरे पहले ही पावरफुल नहीं रहा ना, क्योंकि ही वॉन द बैटल बिकॉज ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स. सो अब यहाँ पे फ्यूडल लॉर्ड्स का कंट्रोल आ गया. और धीरे धीरे इसी तरह से पूरे यूरोप में सारा जो एम्पायर था खत्म हो गया. तो इन द 9th सेंचुरी देयर इज अ बिग पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड एंड स्पेशली इन द यूरोप. क्या नाम था? ग्रीको रोमन एम्पायर. डिक्लाइन हुआ. उसके बाद छोटे छोटे राज्य बने और छोटे छोटे राज्य भी खत्म हो गए. और सबसे पावरफुल कौन हो गया? दीज फ्यूडल लॉर्ड्स बिकम पावरफुल. 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के बीच में यूरोप 500 फ्यूडल लॉर्ड्स में बटे हुए थे. मोर देन 500 फ्यूडल. जर्मनी, इटली, फ्रांस, ब्रिटेन कुछ नहीं था. सब में क्या था? देयर इज नो स्टेट, इट वाज अ फ्यूडल लॉर्ड. मोर देन 500. ये जो पीरियड जो मैं आपको बोल रहा था, क्या बोलता? 9th सेंचुरी से 14th सेंचुरी के पीरियड में फ्यूडल लॉर्ड्स थे. इस फ्यूडल लॉर्ड को ब्रिटेन वाले लोग, यूरोप वाले लोग बोलते हैं मिडिवल पीरियड. ये बोलते हैं कि 14th सेंचुरी में एक चीज़ वर्ल्ड में हुआ यूरोप में, उसका नाम था रेनेसा, पुनर्जागरण. रेनेसा मतलब रीबर्थ. रेनेसा में लोग क्या बोले
नाउ वी हैव टू गो बैक टू दिस फेज, मतलब वी हैव टू गो बैक टू द ग्रीको रोमन एम्पायर। हमें वहाँ से कल्चर लाना है, सब चीज़ लाना है, क्योंकि ये जो लोग जो है ना 9 से 14 सेंचुरी वाले सही नहीं है। इन्होंने बोला 14 सेंचुरी में द इटालियन रेनेसा थिंकर फिलोसफर्स स्टार्टेड सेइंग कि these people are barbarians, these people are uncivilized, we have to go back to the 9th century back Greco-Roman Empire। तो 14th सेंचुरी से मॉडर्न कॉन्सेप्ट शुरू होता है। तो दे स्टार्टेड सेलिंग दैट नाउ 14th सेंचुरी में लोग क्या बोलना शुरू किए, ब्रिटेन में, सॉरी इटली में, फिर जर्मनी में, फिर ब्रिटेन में लोग क्या बोलना शुरू किए। इटली का मतलब यहाँ पे रोम की बात हो रही है, उस समय की मॉडर्न इटली की नहीं, ठीक है। तो इस समय लोग क्या बोलना शुरू किए, नाउ वी आर मॉडर्न, मतलब 14th-15th सेंचुरी में Europeans are writing themselves that they are in which time 14th-15th सेंचुरी। तो मॉडर्न वो हो गया। उससे पहले वाले और ग्रीको रोमन के बाद वाले टाइम क्या हो गया, मिडीवल। 9th से 14th सेंचुरी में उनके लिए मिडीवल हो गया, ये मॉडर्न हो गया। तो मतलब 15th-16th सेंचुरी से वो अपने आप को फुल्ली मॉडर्न मानते हैं। और जेम्स मिल क्या बोलता है इंडिया में, मिड 18th सेंचुरी मतलब 1750 जो यूरोप के लिए मॉडर्न है, इंडिया के लिए क्या था। तो दिस कॉन्सेप्ट ऑफ क्रोनोलॉजी इज कंप्लीटली रॉन्ग। मतलब ये तो उन्होंने बनाया है ना, तो ये तो गलत है ये तो इस तरह से हमें पीरियोडाइजेशंस देखने को मिलता है इंडियन हिस्ट्री में। इसी के बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह सब पीरियड्स आते हैं। तो दिस क्रोनोलॉजिकली इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस। क्रोनोलॉजी समझना, फ्यूडलिज्म इस तरह से आया, इसे हम जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे थोड़ा डिटेल में समझेंगे फ्यूडलिज्म कैसा आया। अब तो फ्यूडलिज्म आ गया था 10th सेंचुरी 11th सेंचुरी में। डिक्लाइन कैसे हुआ पता है, आपने पढ़ा है ना, सुना है नाम। फ्यूडलिज्म 9th-10th सेंचुरी में वर्ल्ड में आया है, यूरोप में। डिक्लाइन 14th-15th सेंचुरी में हो गया था। हाँ, डेमोक्रेसी तो अमेरिकन कॉन्सेप्ट है। हम फ्रांस रेवोल्यूशन में भी डेमोक्रेसी सही से नहीं आई थी। जब फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 हुआ था, हाँ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ। तो सबसे पहला पॉइंट जाते, अच्छा जो फ्यूडलिज्म जो होता है उसमें तो 4 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। क्या होता है पता है, फ्यूडलिज्म हैज़ नो मनी बेस्ड इकोनॉमी। फ्यूडलिज्म में करेंसी नहीं होती है, फ्यूडलिज्म में ट्रेड नहीं होता है। इन फ्यूडलिज्म इज अ विलेज बेस्ड इंडस्ट्री, विलेज होता है उसमें, शहर नहीं होता है। फ्यूडलिज्म में द पीपल विल ग्रो फॉर देयर ओन विलेज ओनली, जितना चाहिए उतना ही उगाएंगे, ट्रेड से कोई मतलब नहीं। जब एग्रीकल्चरल आउटपुट आया तो ट्रेड बढ़ना शुरू हुआ। व्हेन द ट्रेड स्टार्टेड टू बी बिगिनिंग, ट्रेडर्स बिकम रिच। नाउ द ट्रेडर्स डिड नॉट वांट टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। तो ट्रेडर क्या करना शुरू किए, वो शहर में रहना शुरू कर दिए। शहर में फ्यूडल लॉर्ड से कंट्रोल नहीं था। जब ट्रेडर्स शहर में रहना शुरू किए, नाउ द ट्रेडर्स बिकमिंग मोर रिच बिकॉज दे हैड अ वर्ल्ड कॉन्टेक्ट। तो अब ट्रेडर्स क्या करेंगे, दे विल ट्राई टू ब्रेक डाउन द पावर ऑफ फ्यूडल लॉर्ड्स। वो कैसे पावर तोड़ेंगे, तुम एक काम करो शहर में आ जाओ। नाउ दे विल से द एग्रीकल्चरल लेबरर कम टू द सिटी। इसी से ब्लड डेथ हुआ था मिड 14th सेंचुरी में। ब्लड डेथ में बहुत लोग मारे गए थे शहर में। तो सारे लोगों को गांव से शहर बुलाया गया ताकि ये आए। एक तो वर्कर्स बनना शुरू हुए। दूसरा पॉइंट था, दिस ट्रेडर्स स्टार्टेड फंडिंग द स्टेट। जो 10th सेंचुरी में स्टेट जो कमजोर पड़ गया था ना, द स्टेट हु हैड बिकम वेरी लेस पावरफुल, दे बिकम वीक। नाउ द फ्यूडल दिस ट्रेडर, जिसे हम इंग्लिश में बुर्जुआ बोलते हैं। बुर्जुआ वर्ड सुना आप लोगों ने, बुर्जुआ। बुर्जुआ क्लास नहीं सुना है। बुर्जुआ क्लास का मतलब होता है मिडिल मैन, मिडिल क्लास लोग है ना, बुर्जुआ। तो जो बुर्जुआ है, बुर्जुआ इट्स फ्रेंच है, वहाँ से स्टार्ट हुआ और इसका मतलब होता है मिडिल क्लास, ठीक है। तो दिस ट्रेडर हु आर मिडिल क्लास हु आर डिफाइंड इन यूरोप एज अ बुर्जुआ क्लास। नाउ दीज पीपल स्टार्टेड फंडिंग द स्टेट। अब स्टेट को फंड करते, स्टेट क्या करेगा, पैसे आएगा तो बताओ, आर्मी में। पहले स्टैंडिंग आर्मी था ही नहीं, क्योंकि इनकी आर्मी तो छिन गई थी 9th सेंचुरी में। अब स्टेट, फ्रांस सबसे पावरफुल स्टेट बन गया, क्योंकि फ्रांस में ट्रेडर्स आए, पेरिस बिकम शहर बन गया और फ्रांस में क्या हो गया, पावरफुल आया, स्टेट ने आर्मी मेंटेन किया। अब आर्मी क्या करेगी, फ्यूडल लॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देंगे।
क्योंकि अभी फ्यूडल लॉर्ड क्या कर रहा था, 400 वर्ष तक मनमानी कर रहा था अपना। नाउ दे विल डिस्ट्रॉय द फ्यूडल लॉर्ड। तो सबसे पहले क्या है, एग्रीकल्चरल आउटपुट हुआ, ट्रेड बढ़ा, मिडिल क्लास बना, मिडिल क्लास फंडेड द स्टेट, स्टेट मेंटेन द आर्मी, एंड देन आर्मी डिस्ट्रॉयड द फ्यूडल लॉर्ड्स। तो क्या सारे फ्यूडल लॉर्ड्स मारे गए थे? दिस फ्यूडल लॉर्ड्स बिकम द स्टेट पावर। यही ऑफिसर्स बन गए फ्यूडल लॉर्ड, जमीन खरीद लिए, यही फ्यूडल लॉर्ड्स बिजनेसमैन बन गए। जब फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ था तो फ्यूडलिज्म को हटाने के लिए तो हुआ था, है ना? तो मतलब फ्यूडलिज्म तो 14th-15th सेंचुरी में खत्म हो गया, बट दिस फ्यूडल लॉर्ड्स विल बिकम, यही पावरफुल लोग बाद में बने। तो यहाँ पे फ्यूडलिज्म, तो मेन हम डिबेट पे आ रहे थे क्रोनोलॉजी पे। सो इन इंडिया द क्रोनोलॉजी इज वेरी डिफरेंट। जब भी आप हिस्ट्री समझे ना, इस तरह से आप समझिए कि इस तरह से हिस्ट्री बनता है, इस तरह से हिस्ट्री बिगड़ता है इंडिया में। तो ये हमने ये समझा कॉन्सेप्ट, है ना। दूसरा चीज हम समझ सकते हैं इसमें कि बाउंड्रीज कैसे बन रही है। अगर आप वर्ल्ड लेवल पे बाउंड्रीज देखेंगे तो बाउंड्रीज तो हमेशा चेंज होती रही है। एंशिएंट टाइम पे पूरा यूरोप पे ग्रीको रोमन का काल था। अमेरिका वाज अननोन टू एनीवन। कोलंबस से पहले अमेरिका नोन था किसी को? अमेरिका में अभी 3 तरह के लोग रहते हैं। कौन कौन से? एक तो नेटिव अमेरिकन, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेड इंडियंस। तो उनके बारे में पहले लोग नहीं जानते थे कोलंबस से पहले। अदर पीपल आर द यूरोपियंस एंड द ब्रिटिशर्स who migrated from this region to America in the 14th century. 14th century से पहले अमेरिकन लोग वहाँ नहीं गए थे। एंड द थर्ड कैटेगरी ऑफ अमेरिकन आर अफ्रीकन स्लेव लोग, who are migrated for the work purpose, जिनको ले गया गया था। तो अमेरिका में भी 3 तरह के लोग हैं। तो हर तरह टाइम चेंजेस आया है पूरे वर्ल्ड लेवल पे। इटली जर्मनी देश कब बना? 19th सेंचुरी में, 1870-71 में। इन 1871 इटली एंड जर्मनी बिकम इंडिपेंडेंट नेशन, और ये फिर पावरफुल बन गया। एंड सी इन द वर्ल्ड वार 2 हिटलर वाज मोस्ट पावरफुल पर्सन। अब याद है ना वर्ल्ड वार 2 क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 2 में पोलैंड पे जब अटैक किया था, रसिया उनका दोस्त था। हिटलर हैड डिफीटेड फ्रांस। इन्होंने पेरिस पे बम गिरा दिया था। लंदन को कैप्चर करने वाले थे लोग, मतलब इतना पावरफुल था हिटलर। देश कब बना था? 1870 में। और जर्मनी वाज डिफीटेड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। 20 साल में इतना तरक्की कर लिया। तो हमेशा चेंजेस आता है, बाउंड्री चेंज हो रहा है, सब चीज़ चेंज हो रहा है। हिस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो हम एक चीज़ और समझते हैं इसमें, हमने देखा एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री। हम एक बाउंड्री पे गौर करते हैं। इंडिया में बाउंड्री किस तरह से चेंज होता रहा है। जैसे आज इंडिया का मैप है ना, वैसा मैप तो हमेशा से नहीं था। तो वो हम एक चीज़ समझते हैं एंड देन वी विल वाइंड अप। एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एंशिएंट हिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक क्या है, सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अभी टाइम है ना हमारे पास, या वी हैव सम टाइम। सो अभी हम मैप देखते हैं। तो लेट अस हैव अ लुक ऑन द वर्ल्ड मैप फर्स्ट। आपने ये वर्ल्ड मैप देखा है ना? दिस वर्ल्ड मैप इज अ कंटेम्पोररी वर्ल्ड मैप, अभी का वर्ल्ड मैप है, हमेशा ऐसा नहीं रहा है। इफ यू सी ये जो रीजन, जितने जो रीजन्स है, ये कौन सा रीजन था पहले? 1991 में रसिया को जो डिवाइड किया था, यूएस जैसा वाला रीजन था। अब दूसरा मैप है। अभी जो यूक्रेन से फाइट चल रहा है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट। अगर आप एंशिएंट चाइना में देखेंगे, फॉर सम टाइम पीरियड दे हैड रूल टिल दिस एरियाज। ये जो पार्ट है इंडिया का, मिड चाइना में उनका इतना तक रूल था। हाँ, ब्रिटिश टाइम पे, है ना? तो ब्रिटिश टाइम पे इंडिया में इस तरह से। तो आज हम देखते हैं मैप को कि इंडिया में मैप कैसे चेंज होता रहा है, ताकि ये जो हम हिस्ट्री जब भी पढ़े, जो भी पीरियड पढ़े, हमेशा माइंड में रहे कौन सा मैप कैसा था। और जब भी हम पॉलिटी, इकोनॉमिक, कल्चर, कुछ भी एस्पेक्ट्स पढ़े हिस्ट्री में, अच्छा हिस्ट्री में जो भी पीरियड ले ले, 5-6 चीज़ इंपॉर्टेंट होता है। एक तो पॉलिटी, राज्य कैसे बना, कैसे चला, कैसे बढ़ा, कैसे कमा। अनदर इज इकोनॉमी, वेल्थ कितना था, ट्रेड था या नहीं था। अदर इज कल्चर, वेदर दे हैड रिलीजन, आर्किटेक्चर, टेम्पल था या नहीं था। सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। तो इस ह्यूमन का लाइफ कैसा था उस लाइफ में, पीजेंट का लाइफ कैसा था। तो हर टॉपिक में, जो भी टॉपिक ले लो इंडियन हिस्ट्री से, जो आर नॉट फ्रॉम हिस्ट्री, दिस पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, कल्चर, ये सारे चीज़ हर
पीरियड में आते हैं, ठीक है। तो आज हम पॉलिटिकल मैप पे गौर करते हैं। आपने जैसे बोला ये वाला एरिया जो था वो इंडिया का था, है ना। इंडिया का पहले तो नहीं था, अकबर के टाइम पे नहीं था, ये सब ब्रिटिशर्स ने जोड़ा ना इंडिया में। एक सवाल और है, अगर ब्रिटिश इंडिया में नहीं आते तो क्या होता? नहीं, क्यों नहीं, सवाल तो रहेगा ना। अगर मान लो ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते, हम बोलते नहीं है ब्रिटिशर्स नहीं आते तो इंडिया सोने की चिड़िया होती, वो लूट के ले गए इतना सारी चीज़ें। देन ऑफ वेल्थ नहीं पर दादा भाई नौरोजी का, वो रोज बेसिस पे कितने पैसे, 50 करोड़ के हिसाब से उन्होंने डेटा दिया है कि रोज। क्यों कोई और आता? ब्रिटिशर के आने से पहले भी सोशल लेवल्स पे, तो ब्रिटिशर के आने की वजह से कुछ तो हट गए, लेकिन न्यू आइडियोलॉजी मिली। और यूनिटी की बात करो, इंडियन यूनिटी की लेट्स टॉक। All right, so we can credit them for some instance, है ना, क्रेडिट दे सकते हैं उनको, they had at least united us, है ना। तो हम मैप देखते हैं इस तरह से, और मैप में देखते हैं कि किस तरह से हम लोग यूनाइटेड होते हैं। क्या हुआ? तो जो मैप जो है, if you see the map, so from the ancient time when the Paleolithic and the Mesolithic age was here, शुरू के टाइम पे जब पैलोलिथिक मेसोलिथिक, जब हंटर गेदर्स वगैरह जो रहते थे, वो लोग कहाँ पे रहते थे पता है? केव्स में। तो सबसे पहले लोगों का जगह क्या था? द पीपल यूज्ड टू लिव इन केव। जैसे भीमबेटका एक केव है, इन कहाँ पे भीमबेटका है? मध्य प्रदेश में, नियर द कैपिटल भोपाल के पास में, है ना। मध्य प्रदेश में भीमबेटका है। तो पहले लोग केव्स में रहते थे इन द प्री पैलोलिथिक टाइम पे। उसके बाद कहाँ रहना शुरू किया? रिवर्स कब बना? जैसे रिवर्स वगैरह जो जाया था, जो रिवर्स बने हैं वर्ल्ड में, कब बने हैं? हाँ, पर जाए तो रिवर्स जो फ्लरिश हुए कब हुए? विच टाइप ऑफ एज? अच्छा, कितने साल पहले हुए होंगे? पहले रिवर्स उतने नहीं थे। ये हिस्टोरिकल टाइम पीरियड है ना, देखिए हिस्टोरिकल टाइम पीरियड हम अपने हिस्ट्री में पढ़ेंगे, कब डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम शॉर्ट में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले द पीपल यूज्ड टू लिव इन द केव्स। जो दूसरे जो लोग हैं, दे स्टार्टेड लिव इन द सी एरियाज, समुंदर वाले इलाके में, इस तरफ में लोग रहना शुरू किए, है ना। 10,000 BC में कुछ चेंज हुआ था वर्ल्ड लेवल पे इन्वायरमेंट में। क्या हुआ था? वार्म क्लाइमेट आया, आइस एज खत्म हो गया। तो कैसे हुआ? जैसे मान लो पहाड़ है, आइस एज खत्म होगा तो क्या होगा? बर्फ पिघलेगा, फिर क्या होगा? नदी तब बनी जाए था। आप जो बोल रहे पुरानी नदी थी, जब ग्लेशियर पिघलेगा, जब आइस रहेगा तो नदी कहाँ रहेगा? तो देयर विल बी वार्म क्लाइमेट। वार्म क्लाइमेट कब आया वर्ल्ड में? 10,000 BC में। 10,000 BC के आसपास वार्म क्लाइमेट आया, मतलब आज से 12,000 साल पहले। अभी 2000 साल में हम हैं, तो आज से 12,000 साल पहले क्या हुआ? ग्लेशियर्स पिघलना शुरू हुआ, आइस एज जब खत्म हुआ, द वार्म क्लाइमेट केम एंड इट फॉर्म्ड रिवर्स। जब रिवर्स आया तो क्या होगा? एग्रीकल्चर होना शुरू होगा, क्योंकि हर जगह क्या होगा? पानी पानी रहेगी। देन रिवर्स विल बी देयर, देन द एग्रीकल्चर वाज पॉसिबल। पहले एग्रीकल्चर पॉसिबल ही नहीं था। हमारा पहला एविडेंस वर्ल्ड लेवल पे एग्रीकल्चर का मिलता है 9,000 BC में। 9,000 BC से पहले एग्रीकल्चर होता ही नहीं था, मतलब वी डोंट हैव एविडेंस, है ना, कोई एविडेंस नहीं है, ठीक है। हो सकता है बाद में आ जाए, रिसर्च हो, कुछ हो, ठीक है। आप समझ रहे हैं पॉइंट्स? तो वर्ल्ड का क्लाइमेट अलग था, देयर वाज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेट इन द वर्ल्ड। रिवर्स बनना शुरू हुआ, तब क्या करेंगे लोग? फर्स्टली द पीपल वर लिविंग इन द
caves. Secondly, in the sea areas, now due to the glacier and the warm climate, there are large number of rivers were formed. Now the people can live during in the areas of rivers also. इंडिया में जो फर्स्ट इन्वायरमेंट आया, जो फर्स्ट एम्पायर जो बोल सकते हैं, दैट वाज यू सेड इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना। तो सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पे आया? इस वाले रीजन में। तो हम भारत का जो पहला मैप जो देख सकते हैं वो इंडस वैली सिविलाइजेशन से देख सकते हैं। If we credit ourselves, if we attach ourselves with the Indus Valley civilizations and emotions, we can see that our map in India in that time was this one. अब देख रहे हैं, this was a map of Indus Valley civilizations. So we were mostly limited to the Western India only, Pakistan, some parts of Afghanistan, and Haryana, Punjab, Gujarat, है ना, Rajasthan. So we were limited to these parts of India only. That was a northwestern India. So our political map in Indus Valley civilization कहाँ तक था? नॉर्थ वेस्ट इंडिया में था। वैदिक टाइम में हम देखेंगे, ये देखो, दिस वाज द नॉर्थ वेस्ट इंडिया, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वैदिक है। इट वाज अ पीरियड ऑफ लिमिटेड टू सप्त सिंधु। सप्त सिंधु जो रीजन है, सो दिस इज अ वैदिक टाइम पीरियड का मैप। मतलब वैदिक टाइम पे पाटलिपुत्रा वाज नॉट, पाटलिपुत्रा यहाँ पे है, मतलब पटना वाज नॉट देयर। उज्जैन नहीं है इस तरफ पे, उज्जैन, महाराष्ट्र, सेंट्रल इंडिया, राजस्थान, ये सारे रीजन्स में, मगध रीजन ऑल्सो। तो मगध रीजन, दीज ऑल रीजन्स वर नॉट पार्ट ऑफ पॉलिटिकल मैप इन वैदिक टाइम्स। वैदिक टाइम्स में ज़्यादातर लोग कहाँ लिमिट थे? दे वर लिमिटेड टू ओनली, तो दिस वाज इंडस वैली एंड नाउ। तो इंडस वैली का टाइम पीरियड क्या है? 2700 मेन मानते हैं, 2300 मेन मेच्योर हड़प्पन पीरियड का टाइम है, 2300 BC टू 750 BC। नहीं, जो मेच्योर जो है 2300 से क्या मेच्योर, एक तो प्री हड़प्पन पीरियड होता है, एक लेटर हड़प्पन पीरियड होता है, जो 3300 BC से स्टार्ट होता है। बट जो मेच्योर टाइम पीरियड है वो 2300 टू 750 है। और वैदिक सिविलाइजेशन कब स्टार्ट होता है? 1500 टू 1000 एंड देन 1000 टू 600 लेटर वैदिक पीरियड। सो दिस इज अ मैप ऑफ अर्ली, मतलब रीड वैदिक पीरियड, ठीक है। अर्ली नहीं बोलते, रीड वैदिक बोलते हैं, और दूसरे लेटर वैदिक बोलते हैं। इफ यू सी द मैप ऑफ अदर पीरियड, दिस इज अ मैप ऑफ 16 महाजनपद। मतलब 16 महाजनपद के टाइम पे, मतलब 1000 से 600 वर्ष के आसपास हमारा मैप एक्सटेंड हो रहा है। वी हैड अर्ली सेटलमेंट्स इन इंडिया। और जो सबसे ज़्यादा फार साउथ है वो कुंताला रीजन है। इस पे क्वेश्चन आ सकता है, कुंताला वाज वन ऑफ द साउदर्न मोस्ट 16 महाजनपद। मतलब उस समय बहुत सारे महाजनपद से, पद मतलब क्या होता है? एरिया। जनपद जब भी होता है पद एंड एरिया, और दिस महाजनपद मतलब बिगर। तो देयर वर 16 महाजनपद इन 600 BC। 600 BC में 16 महाजनपद, मतलब देयर वर 16 महाजनपद हु वर रूलिंग इंडिया एट अ डिफरेंट प्लेस ऑफ टाइम। इन सब में जो सबसे पावरफुल हुए थे वो मगध, एंड स्लोली दे स्टार्टेड स्टैंड इन देयर एरिया। तो पहली मैप में क्या था? हम उस तरफ से आ रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, एंड नाउ there were 16 Mahajanpad, and in which these Magad become very powerful. जब मगध पावरफुल हुआ तो इन अर्ली टाइम दिस वाज द मैप ऑफ मगध एम्पायर। 5th सेंचुरी में कौन सी डायनेस्टी थी इंडिया में? हर्यक डायनेस्टी, मगध का ही। कौन सा रूलर था? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन एंड ऑल। तो इनके टाइम पे मगध वाज लिमिटेड टू दिस। आप जानते हैं कि मैरिज अलायंस से इन लोगों ने स्टैंड किया एम्पायर। अवंती के साथ इनका अलायंस भी था, फाइट भी बहुत चल रही थी। लिच्छवी, इन सबको कब्जा भी कर लिया था इन्होंने, मैरिज अलायंस एंड फाइट थे। तो द मैप ऑफ इंडिया इन द 5th सेंचुरी वाज दिस। ग्रेजुअली मैप बढ़ रहा है हमारा। इफ यू सी दिस मैप इज ऑफ अ मौर्यज। ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया भी कुछ इंक्लूड हो रहा है। अफगानिस्तान इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इन दैट टाइम, है ना। अफगानिस्तान, दिस पाकिस्तान अफगानिस्तान एरिया है हमारा। तो जो फर्स्ट मैप है, द ब्लू कलर वाला जो मैप, दिस ब्लू कलर एरिया वाज टेकन
into modern empire by the first ruler Chandragupta, and this area by Bindusar, and Kalinga was added to by Ashoka. So this is a map of Ashokan empire. Maurya during the time of Ashoka, this vast empire was in India. In South India we have Cheras, Pandyas and Cholas. So ये हमारा मैप बढ़ना शुरू होता है. The unity we had after 1947, we had in 3rd century, 2nd century BC में unity थी हमारे पास. The one single ruler Ashoka was ruling over the अखंड भारत का जो concept है अभी उस पूरे में रूल कर रहा था. But do you know what happened after the decline of Mauryas? We have again decentralization in India. राज्य जैसे अपने बोला ब्रिटिशर्स इंडिया में नहीं आते क्या होता. We got divided into different parts in the post modern period. ये पार्ट्स ऐसे बढ़ गए थे. अब देखेंगे मैप को. ये पोस्ट मॉडर्न पीरियड में इंडो सिंथियंस थे, इंडिग्रोग इधर आ गए, सातवाहन एक नया रूल बना लिए थे, सातवाहन एम्पायर, अवंती, पांड्या, चेरा, जन ये सब. So these people were making different types of dynasties in India. So India was again decentralized. समझ में आ रहा है? मतलब इंडिया वैसा नहीं था उस समय जैसा अभी है. मौर्य के टाइम पे था, इवन अभी जितना उससे ज़्यादा था. During the Ashoka, it was more vast political territory we had as compared to we have now. But in the 3rd, 2nd century BC, 1st century AD, 2nd century AD में हमारा मैप क्या था? We were divided in many parts. पर फिर एक नया एम्पायर आया जिसे हम गुप्ता बोलते हैं 1st century AD में. Do you know what happened? It started from here. इनका रूल भी पाटलिपुत्रा से ही था. सबसे पहला चंद्रगुप्त आए, है ना. उन्होंने इस जो ब्लू जो डार्क है वहाँ पे रूल किया. उसके बाद कौन सा आया? समुद्रगुप्त एडेड दीज रीजन्स एंड देन दीज रीजन्स वर एडेड इनटू गुप्ता एम्पायर. सो गुप्ता को हमेशा ये पूरा एम्पायर इट वाज फ्री. यहाँ पे अलग अलग रूल था, डिफरेंट डायनेस्टीज. हमें फिर गुप्ता एम्पायर फिर से बट गया, फिर से टूट गया. सो फर्स्ट एम्पायर वाज मौर्य विच वाज वेरी पावरफुल. फिर हमें मौर्य कब खत्म हुआ? 185 BC में मौर्यंस डिक्लाइन. सो 185 से 320, इसको हम 320 नहीं लेते हैं. ये जो बड़ा एम्पायर कब हुआ? 400 के आसपास हुआ. तो 400 मतलब 500 वर्ष तक इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डायनेस्टीज. और फिर गुप्ता एम्पायर आए, फिर से स्ट्रॉन्ग किया. और गुप्ता एम्पायर को हम क्या बोलते हैं? गोल्डन एज पीरियड बोलते हैं ना. उस पर हम पढ़ेंगे वेदर इट वाज गोल्डन एज और नॉट इन डिटेल जब हम वो टॉपिक पे आएंगे. ठीक है. इसके बाद क्या हुआ? ये जो टाइम पीरियड है दिस विल इन बाय 500. 500 वर्ष आते आते टाइम खत्म होता है. उसके बाद छोटे छोटे एम्पायर फिर से बनने शुरू होते हैं. दैट दिस मैप विल टेल यू. इफ यू सी दिस मैप, ये अर्ली मिडिवल इंडिया का मैप है 750 से 1200 के आसपास में. इसमें यहाँ पे राजपूत लोग रूल कर रहे हैं. राजपूत जो वर्ड है इसी टाइम पे आया है. इससे पहले राजपूत वर्ड वगैरह नहीं था, राजपूत क्लैन भी नहीं था, मतलब जो राजपूत रूल करते वो भी नहीं थे. एंशिएंट इंडिया में क्षत्रिय था. तो क्षत्रिय राजपूत में अंतर होता है ना, वो हम पढ़ेंगे बाद में. कि राजपूत जो है कब आना शुरू किए? इसी टाइम पे, मतलब 750 के बाद आना शुरू होते हैं आफ्टर गुप्ता पीरियड. ठीक है. तो राजपूत है. उसके बाद गुर्जर प्रतिहार है हमारे पास, चालुक्याज है, पांड्या, चेरा, पालाज. बंगाल बिहार में किसका रूल था? पालाज का. तो पाल एम्पायर वाज देयर. कुमराव हो गया, बैगन हो गया, पेजी हो गया. एंड दिस वाज अ गजनवी सल्तनत. यहाँ पे गजनी का रूल था. गजनी क्या है पता है वर्ड? गजनी मतलब क्या होता है? गजनी किसका नाम था? हाँ, तो गजनी सिटी का नाम था. हाँ, तो हिज नेम वाज महमूद एंड ही वाज फ्रॉम गजनवी स्टेट. जो ये जो राज्य नहीं दिख रहा, गजनवी. सो गजनी एक वर्ड है. सो इट वाज अ सिटी. गजनी वाज अ सिटी. गजनवी वाज अ एम्पायर था. ये पूरा सेंट्रल एशियन और पाकिस्तान लैंड आ रहा है. और उसका जो राज्य का जो लीडर था उसे हम महमूद ऑफ गजनवी. तो उसे हम हिंदी में मोहम्मद गजनवीद बोलते हैं. और क्या बोलते हैं? महमूद गजनी. तो ही वाज अ मोहम्मद फ्रॉम गजनवीद. ही अटैक मेनी टाइम्स इन इंडिया. और कौन से टाइम पे अटैक कर रहे थे? 1000, 1010, 1025 AD में.
सो 1000 इज ए पीरियड ऑफ गजनवी, जब वो यहाँ से आना शुरू किए और धीरे धीरे अटैक कर रहे थे, ठीक है। तो दिस वाज द मैप ऑफ डिसेंट्रलाइज इंडिया। इंडिया बहुत पार्ट में बटा हुआ था। तो पहला अटैकर था गजनवी। अच्छा, पहला मुस्लिम रूलर कौन था जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आया था? हाँ, मोहम्मद 712 AD में, है ना। ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन, पर वो शुरू में ही रह गया था, इधर नहीं आया था। हाँ, पर गजनवी कहाँ तक आया? सोमनाथ तक आ गया। ही लूटेड मेनी टाइम्स, है जो सोमनाथ टेम्पल्स है। दूसरे मेन पावरफुल इन्वेडर कौन था? गौरी वाज आल्सो ए स्टेट, हिज नेम वाज मोहम्मद, है ना। तो मोहम्मद ऑफ द गुरिद एम्पायर था, जैसे गजनवी थे। तो दिस गजनवी एम्पायर वर कैप्चर बाय गुरिद एम्पायर इन लेटर पीरियड। और जब ये लोग अटैक करना शुरू किए, याद है आपको 1192-93 में जो बैटल हुआ था, फर्स्ट एंड सेकेंड बैटल ऑफ ट्रेन बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। नाउ दे हैड डिफीटेड पृथ्वीराज चौहान, सो दे केम टिल दिस रीजन। पृथ्वीराज चौहान का कहाँ से रूल था? तो राजस्थान से था, और उनका दिल्ली पे भी कब्जा था पृथ्वीराज चौहान का। एंड दिस पीपल डिफीटेड एंड मोहम्मद गोरी डिप्यूटेड हिज स्लेव नेम कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और लाहौर का जिम्मेदारी दिया गया था। एंड जब गोरी डाइड हुए, ही डाइड, कुतुबुद्दीन ऐबक डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ एज अ एम्परर एंड ही फाउंडेड दिल्ली सल्तनत एम्पायर। तो जब दिल्ली सल्तनत एम्पायर बना, उस समय उनकी रूल बहुत छोटी थी। इट वॉज नॉट रिलेटेड इन ऑल इंडिया बेसिस। इफ यू सी द मैप, जो फर्स्ट टाइम पे जो मैप पे देखेंगे, उनका जो रूल था इसी रीजन पे लिमिट था। कौन से टाइम पे? कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम पे द मैप ऑफ इंडिया वाज लिमिटेड टू दीज रीजन्स ओनली। इसके बाद मैप फ्लरिश होता है। व्हेन यू गो इनटू मोर डिटेल, दीज रीजन्स वर ब्राउट इनटू दिल्ली सल्तनत बाय इल्तुतमिश, राइट। इल्तुतमिश ब्राउट दिस मैप इनटू इंडिया, और ये उस समय पॉलिटिकल मैप था जब इल्तुतमिश का डेथ हुआ। कब हुआ था? 1236 में। देन रजिया सुल्तान बिकेम द क्वीन, सी हैंडल, देन बलबन आए, फिर अलाउद्दीन खिलजी आए। खिलजी डायनेस्टी आया स्लेव डायनेस्टी के बाद। खिलजी डायनेस्टी में खिलजी ने बहुत एक्सपेंशन किया एंड खिलजी हैड कैप्चर्ड दीज रीजन्स ऑल्सो। ये जो रीजन्स है, ये रीजन्स दिल्ली सल्तनत में खिलजी द्वारा लाया गया, बट इट डिड नॉट लास्टेड मोर देन 30 ईयर्स। खिलजी आए, मोहम्मद बिन तुगलक आए, आपको पता है 1336 में क्या हुआ था इंडिया में? यू रिमेंबर द डेट? एनीवन? 1336 हरियर एंड बुक्का। हरियर एंड बुक्का का नाम सुना आप लोगों ने? नहीं सुना है आपने? विजयनगर एम्पायर का नाम सुना है? सो 1330 आप हम मैप क्या देख रहे हैं? दैट दिस वाज द मेन मैप ऑफ दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी ने इन सब पे कब्जा कर लिया एंड देन he had integrated Indian empire. But what happened? After 30 years, तुगलक, जब मोहम्मद बिन तुगलक was ruling India, एम्पायर कमजोर पड़ गया। और साउथ इंडिया में यहाँ पे क्या हुआ? विजयनगर एम्पायर ने अपना राज्य बनाया, हरियर एंड बुक्का। एंड देन दिस पीरियड वर ब्राउट बाय बहमनी किंगडम, विजयपुर, गोलकोंडा, इन सब में, है ना, विराट, अहमदनगर। तो इंडिया में इस तरह से मैप डिवाइड हो गया। विजयनगर, दिस वाज द विजयनगर एम्पायर, दिस वाज द बहमनी एम्पायर, एंड दिल्ली सल्तनत वाज लिमिटेड टू दीज रीजन्स ओनली। डू यू नो, जब बाबर इंडिया में आए थे, बाबर कब इंडिया में आए? 1526, द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। जब बाबर इंडिया में आया, ही फॉट विद होम? दिल्ली सल्तनत के लास्ट रूलर, लोधी डायनेस्टी का जो रूलर, क्या नाम था? इब्राहिम लोधी। Do you know what is the political map of Delhi Sultanate of that time? बस नॉर्थ इंडिया में लिमिट था, बहुत छोटे रीजन पे उसका रूल था। तो जिस तरह से दिल्ली सल्तनत में मैप जो बढ़ा इंडिया का, इसका मैप छोटा हो गया। नाउ द बाबर केम एंड ही स्टार्टेड कैप्चरिंग इंडिया। ही केम इन 1526, ही डाइड बाय 1530। मैप बहुत छोटा था एंड जस्ट विद इन 10 ईयर मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेटेड। याद है ना, हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेरशाह सूरी इन द बैटल ऑफ चौसा एंड ऑल आफ्टर दैट, है ना। तो शेरशाह एम्पायर आया इंडिया में
तो इंडिया में एम्पायर बनता गया, बिगड़ता गया थ्रू अ पीरियड ऑफ टाइम. एंड इफ यू सी दिस मैप ऑफ द मुगल, द फर्स्ट मैप जो है, दिस इज द फर्स्ट मैप जो 1530 तक था. So during the time of Babur, the Mughal Empire was limited to this region. मतलब अयोध्या, बिहार, काबुल, कश्मीर, ये सब रीजन उनके पास था. But in the later phase, this yellow highlighted region, ना, these regions, Bengal and all, were added to the Mughal Empire by Akbar. मतलब अकबर को भी साउथ इंडिया में कंट्रोल नहीं था. He had no control in South India. साउथ इंडिया में कंट्रोल कौन लाया? औरंगजेब ओनली. When he captured बीजापुर एंड गोलकोंडा अगेन. जब साउथ इंडिया में इसलिए कम लाया क्योंकि विजयनगर एंड अहमदनगर एम्पायर, जो बहमनी किंगडम जिसे हम बोलते हैं, तो विजयनगर एम्पायर एंड बहमनी किंगडम स्टार्टेड डिसइंटीग्रेटिंग आफ्टर 1650. तो जब 1650 के बाद ये लोग कमजोर पड़ना शुरू हुए, देन औरंगजेब अटैक एंड दिस रीजन्स वर एडेड इनटू मुगल डोमेन. तो फिर से हम देखते हैं. आप अच्छा पता है इंडियन हिस्ट्री में 2 ही एम्पायर था जिनके पास इतना वास्ट पॉलिटिकल मैप था. वन वाज मौर्य, अदर वाज मुगल. दिस वास्ट मैप जो था इन्हीं के पास था. एंड देन अगेन व्हाट हैपेंड, औरंगजेब डाइड इन 1707. स्लोली ग्रेजुअली द एम्पायर अगेन फिर से डिसइंटीग्रेट हुआ. अगर आप ये मैप देखेंगे, ऑल मैप इज अंडर मुगल्स. इफ यू सी द नेक्स्ट मैप यू विल फाइंड इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू दिस पार्ट्स. इस तरह से मैप बन गया था. मुगल डिक्लाइन के बाद मराठा वाज बिकमिंग पावरफुल. और ये मुगल एम्पायर है. 18th सेंचुरी की बात हो रही है. 18th सेंचुरी मुगल एम्पायर इतना बड़ा था. अब मराठा, दिस वाज द मराठा एम्पायर. और ये ऑल इंडिया लेवल पे फाइट कर रहे थे. जब थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ी गई कब? 1761 में. व्हेन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वाज फॉट. क्यों फाइट हुआ था? अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली अटैक इंडिया. तो इंडिया में 1761 में अटैक किया. तो 1761 में क्या हो रहा था इंडिया में? इंडिया को किसको डिफेंड करना चाहिए था? मुगल्स को. मुगल ने क्यों नहीं किया? दे वर नॉट पावरफुल. हु वर पावरफुल इंडिया एट दैट टाइम? दैट इज व्हाई बाजीराव सेकंड का जो बेटा था, है ना, ही वेंट फ्रॉम पुणे टू पानीपत, ये जो एरिया है, और पानीपत में जाके दे फॉट एंड ही डाइड. और उसके वजह से बाजीराव सेकंड का भी डेथ हो गया. ठीक है, उनके बेटे के मरने की वजह से ही. तो इट मीन्स इन 1761 मुगल्स वर नथिंग, क्योंकि मुगल को डिफेंड करना चाहिए था. 1761 में ब्रिटिशर्स भी तो इंडिया में थे. उन्होंने क्यों नहीं डिफेंड किया? आपको पता है ना, प्लासी का बैटल हो चुका था 1757 में. दे हैड नॉट डिफीटेड. तो इंडिया में बहुत सारा बटा हुआ था. हैदराबाद इज वाज इंडिपेंडेंट स्टेट, मैसूर, बंगाल, अवध, सिंध, सिख. So the India in the 18th century, but 18th and 19th century were divided again into different parts. मौर्य के बाद पोस्ट मॉडर्न में देखा ना, सातवाहन, इंडो-ग्रीक, सेंथियंस, है ना, कुषाण, ये सारे एम्पायर आए थे. 18th सेंचुरी में मुगल के बाद भी देखो मराठा, बंगाल, अवध, हैदराबाद. These all empires were becoming famous in this time. But what happened? Britishers came and they had defeated everyone slowly, gradually, and they founded an empire. So 19th century, if you see the 19th century map, this was a 19th century map of India. So 19th century map of India is very different. How? This blue highlighted region, these blue highlighted regions were the princely estate. Okay. So they had signed subsidy alliance system with the Britishers, and the yellow highlighted regions were British कंट्रोल. ब्रिटिशर्स ने सिर्फ उन रीजन को कंट्रोल किया जो इकोनॉमिकली प्रोस्परस था, नहीं तो सबको छोड़ दिया इन्हें. मैसूर को हराया ना, तो बोडिया डायनेस्टी को बुला के उनको रिटर्न कर दिया, और जो इम्पोर्टेंट पोर्ट्स थे सब अपने पास रख लिए. सो दिस येलो रीजन्स वर अंडर कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. दिस इज अ मैप ऑफ 19th century इंडिया अंडर द ब्रिटिश रूल, जिनके पास ये भी था रीजन्स, है ना. ये जो रीजन्स बोल रहे हैं, अफगानिस्तान का जो रीजन्स बोल रहे हैं, so these regions were also a part of British India. But do you know when India was supposed to be independent और पार्टीशन होना था, और ये सब जो रीजन्स थे तो एक प्लान बनी
एंड द प्लान वाज दैट, और इस तरह से डिवाइड हुआ इंडिया किस तरह से बनेगा। इन दैट टाइम द इंडिया, वी नो दैट इंडिया कितने तरह का था, 2 तरह का था। वन वाज प्रिंसली, इंडिपेंडेंट थे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के साथ, और दूसरा ब्रिटिश इंडिया था। प्लान सिंपल था, जो ब्रिटिश इंडिया रहेगा और 2 भाग में बन जाएगा, इंडिया और पाकिस्तान। सो वन प्लान बन वेरी सिंपल, ब्रिटिश इंडिया, दिस येलो हाईलाइटेड रीजन कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट, इंडिया एंड पाकिस्तान। बट द ब्लू रीजन्स, दिस ब्लू रीजन्स जो प्रिंसली स्टेट थे, उसको 3 ऑप्शंस थे। क्या क्या ऑप्शंस थे? या तो इंडिया में आ जाओ, दूसरा क्या था, और थर्ड बी इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंस मीन्स in 1947 there were 565 princely states। मतलब ये बोल, इनका कहना था कि 565 अगर चाहते तो इंडिपेंडेंट रह जाते। तो देयर वर 565 प्रिंसली स्टेट, और ये टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है प्रिंसली स्टेट वाला, यूपीएससी में मेंस के रिस्ट्रिक्शंस है ना। तो देयर 565 प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया एंड दे हैड अ चॉइस, इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट, और यूनियन फॉर्म कर लो अपना प्रिंसली स्टेट। तो क्या प्लान हुआ, 565 में से 13 ने डिसाइड किया, पार्टी ने डिसाइड दैट वी विल मर्ज इनटू पाकिस्तान। तो इंडिपेंडेंस से पहले 15 अगस्त 14 अगस्त से पहले ही दे मर्ज इनटू पाकिस्तान, पहले ही मर्ज हो गया। ठीक है, ये जो जिस तरह के स्टेट थे, दे मर्ज इनटू दीज रीजन्स। 552 वाज सपोज्ड टू बी मर्जिंग विद इंडिया, जिसमें से 500 है ना, 549 मर्ज विद इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस, मतलब बिफोर 15 अगस्त 549 स्टेट मर्ज विद इंडिया। 3 राज्य रह गए थे आज़ादी के बाद जो मर्ज नहीं होना चाह रहे थे। जूनागढ़, जहाँ पे पहले डिसाइड कराया गया, फिर उनको मर्ज कराया गया, क्योंकि वहाँ के राजा चाहते थे पाकिस्तान जाए, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो चाहते थे इंडिया में जुड़े, और वो प्राइम मिनिस्टर बीमार पड़ गए, विदेश चले गए। भुट्टो साहब प्राइम मिनिस्टर बन के पाकिस्तान से आए सिंध से, एंड ही वांटेड टू मर्ज विद पाकिस्तान। तो जूनागढ़ वाले हिंदू डोमिनेटेड स्टेट, 80% पॉपुलेशन करीब हिंदू का था, और उन्होंने विदाउट डिक्लेरेशन, विदाउट इंडिया को लेटर लिखे हुए पाकिस्तान में मर्ज भी हो गए। एंड द इंडियन गवर्नमेंट, जवाहरलाल लीडर PM नेहरू एंड पटेल केम टू नो थ्रू न्यूज़पेपर that Junagadh declared to be merging with Pakistan through newspaper। इन्होंने कॉल भी नहीं किया, लेटर भी नहीं लिखा। तो वहाँ पे फिर वो हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे इस पर, ठीक है। तो जूनागढ़ यहाँ पे, हैदराबाद में भी सेम प्रॉब्लम था, पॉपुलेशन का भी था। वहाँ के निज़ाम पहले इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, फिर चाहते थे वहाँ मर्ज हो। एंड कश्मीर तो कहीं चाहता भी नहीं था। कश्मीर का राजा थे, क्या नाम था, हरि सिंह। He wanted to be remain independent, but he had a pressure। और वहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी था, क्या नाम था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, शेख अब्दुल्ला, वो क्या चाहते थे, क्यों? क्योंकि वो जानते थे अगर कश्मीर इंडिपेंडेंट रहेगा तो क्या रहेगा, किंग का रूल रहेगा। एंड ही वॉज अ वेरी यंग पर्सन एंड ही वॉज अ सपोर्टर ऑफ डेमोक्रेसी, सो ही हैड ओनली वन ऑप्शन, टू ज्वाइन विद इंडिया, इंडिया में ज्वाइन। सो दीज पीपल, बहुत सारे स्टोरीज हैं। 1948 आते आते क्या हुआ, वी हैव अ न्यू मैप, और न्यू मैप आया, एंड नाउ दिस मैप बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया, दिस बिकम पाकिस्तान, एंड दीज रीजन्स बिकम ईस्ट पाकिस्तान, है ना, ये वाला जो रीजन है ईस्ट पाकिस्तान बन गया। सो हमने क्या देखा है, थ्रू अ हिस्ट्री द पॉलिटिकल मैप इन इंडिया हैज बीन चेंजिंग। सेम थिंग हैपन विद द इकोनॉमी आल्सो। हमने देखा अशोक के टाइम पे क्या था, अफगानिस्तान भी हमारा था, ये सब भी हमारा पार्ट था। मुगल के टाइम पे वर्ल्ड में 3 ही एम्पायर पावरफुल थे सबसे ज़्यादा। आपको पता है कौन कौन से थे? मतलब 3 एम्पायर वर द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड, पॉलिटिकली आल्सो, मिलिट्री में भी पावरफुल थे, पैसे भी थे। रोमन तो क्या बोला आपने, फिर से बोलो, रोमन या ऑटोमन बोला आपने, क्या बोला था, रोमन या ऑटोमन? ऑटोमन था, ठीक है। तो रोमन कब डिक्लाइन हुए थे?
9th सेंचुरी एडी में ग्रीको रोमन डिक्लाइन. सो मुगल जब था 16th-17th सेंचुरी में, वन वाज मुगल, अदर वाज ऑटोमन्स एंड थर्ड वाज सफवीद. तो दीज 3 एम्पायर वर द मोस्ट पावरफुल एम्पायर इन द वर्ल्ड. इनमें से 25% शेयर पूरे वर्ल्ड का जीडीपी का इंडिया. तो इंडिया वाज सो मच पावरफुल इन दैट. ब्रिटिशर्स के ऑफकोर्स दे हैड, ब्रिटिशर्स साथ अमीर कैसे बने? जब हम इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ेंगे ना तो हम समझेंगे. एक हिस्टोरियन है, अभी टाइम है हमारे पास, ऑलमोस्ट जाने वाला है, आई विल टेक 3-4 मिनट्स. तो एक हिस्टोरियन है, किनिथ पोमरेंज है. आप लोग अगर इकोनॉमिक्स पढ़ते होंगे तो उनका नाम सुना होगा, इकोनॉमिस्ट है वो, किनिथ पोमरेंज है ना. उन्होंने थ्योरी दिया है, ग्रेट डाइवर्जन थ्योरी. उस थ्योरी में बोला है कि 18th सेंचुरी में जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो रहा था तो चाइना में जो एक जगह था यांजी डेल्टा, साउथ ईस्ट चाइना जो है ना, तो चाइना में यांजी डेल्टा और यूरोप में ब्रिटेन, दोनों सेम थे. मतलब पावरफुल के दृष्टिकोण से पैसे दृष्टि सेम थे. पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में क्या हुआ, ब्रिटेन आगे चला गया और चाइना क्या हुआ, पीछे रह गया. क्यों हुआ पता है? वो बोलते इनके पास कॉलोनीज था. इन्होंने क्या कि कॉलोनीज से पैसे लाए, दे ब्राउट मनी रिसोर्सेज फ्रॉम द कॉलोनीज, दे एक्सप्लॉइटेड द रिसोर्सेज ऑफ कॉलोनीज. पहले अमेरिका में, देन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, अफ्रीका. आपको पता है ब्रिटेन लोग अफ्रीका में कब जाना शुरू किए? आफ्टर 1857 बैटल, जब देखा कि इंडिया में खतरा हो सकता है फ्यूचर में, देन दे मूव टुवर्ड्स अफ्रीका. उससे पहले आते नहीं थे. तो लॉट ऑफ स्टोरीज इन द वर्ल्ड हिस्ट्री ऑल्सो. और फाइनली अमेरिका बिकम पावरफुल. अमेरिका ने एनर्जी लाया, इंजन्स बनाए जो, और स्टीम इंजन जो आया उसके बाद. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट द पॉइंट इज द कॉलोनीज प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट. और लास्ट में देश आज़ाद हुआ इंडिया. सिर्फ इंडिया आज़ाद नहीं हुआ, अदर इंडियन सब कंट्री नहीं, यूरोप में, जैसे पाकिस्तान तो हुआ ही, यूरोप में अगर आप जाएंगे या अफ्रीका में जाएंगे, ब्राज़ील में, अफ्रीका में घाना, साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, युगांडा, इजिप्ट, तो these all countries become independent at the same time. We got independence in 1947. They got independence by 1960. तो अगले क्लास में बाद में वर्ल्ड हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे ऐसा क्या रीजन था कि अचानक सब देश आज़ाद होने लगे. इंडिया में तो बहुत पावरफुल स्ट्रगल था हमारा. पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्ट्रगल कहाँ पे हुआ है? इंडिया में, कॉलोनी. दूसरे देश में इतने स्ट्रगल नहीं थे. बट दीज ऑल कंट्री बिकम इंडिपेंडेंस. हाउ? अमेरिका की वजह से. एक कहावत सुना है, जंगल में एक ही शेर होते हैं. हाँ सुना है ना. 1945 में क्या हुआ? 1945 में जब वर्ल्ड वार 2 खत्म हुआ, व्हाट हैपेंड? 2 पीपल बिकम पावरफुल. तो 2 कंट्री, यूएसए एंड ब्रिटेन. कहाँ से पावरफुल रहेगा? तो अगर ये जंगल में पावरफुल लोग 2 लोग हैं, यूएसए एंड, तो हाउ कैन ब्रिटेन बी बिकम पावरफुल? ब्रिटेन के पास सबसे कॉलोनी ज़्यादा है, कैसे? तो ये एडजस्ट कर पाते? इनको पछता ही नहीं है ना. तो यूएसए एंड यूएसएसआर आर द मेन कॉजेज बिहाइंड द डीकोलोनाइजेशन प्रोसेस. हम कभी और समझेंगे. टुमारो वी विल स्टार्ट विद सोर्सेज ऑफ एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री. आई विल शेयर द नोट्स विद यू एंड यू रीड बिफोर दैट. बुक भी पढ़ना जो आप पढ़ सकते हो, और समझते हैं साथ में मिलके. ठीक है, क्वेश्चंस वगैरह सब लेंगे. अभी कोई क्वेश्चन है तो बोलो, 4 मिनट है. एनीवन क्वेश्चन फ्रॉम ऑनलाइन? वी विल एंड इट नाउ. वी विल मीट टुमारो. ऑलराइट, जो भी क्वेश्चंस हो कल आइएगा.